તમારા લેવલે કરવાનું છે કારણ કે પ્રતિકભાઈએ તો તમને ત્યાંથી અનમ્યુટ કરેલા છે. ત્યાં અનમ્યુટ કરવાનું ઓપ્શન છે ને એ તમારે હા હવે એ કર્યું મેં. આવી ગયો સાહેબ, અવાજ આવે છે? સાહેબ આવી ગયો આપનો. આવે છે? હા હા યસ સર. વોઇસ આવ્યો? હા આવે છે. ઓકે. સર સોની સાહેબ. યસ, ગુડ આફ્ટરનૂન. મજામાં? આનંદ આનંદ. આનંદ ને? ઓકે. અનિલભાઈ મજામાં? પાંચેક મિનિટ રાહ જોવી છે. Yes, sir. હજુ થોડાક પાર્ટિસિપન્ટ આવવાના બાકી છે ને. If I am not wrong, Miss Vaishali is yet to be joined. નહીં નિગમભાઈ she has already joined. I have joined. Okay. Please join. પણ આપણે હજુ પાર્ટિસિપન્ટ થોડા ઓછા છે, થોડી વાર રાહ જોઈએ. પાંચેક મિનિટ. જી. So during discussion with Mr. Pritam, એમણે ઘણી બધી મહેનત કરી છે. અચ્છા. And last time what he has presented before, I think Maharashtra Tax Bar Association. બોમ્બે એસટીપી એસોસિએશન એના ઉપરથી તો I was inclined to call him. Yes. એટલે મેં અમને બોમ્બે થી નંબર રાજભાઈ પાસેથી લઈને અમને ફોન કર્યો હતો મેં, અને પછી તમને બધાને સોંપેલું કે એમનો કોન્ટેક્ટ કરીને આપણે ગોઠવી દો. I had heard him in Bombay Association. करेक्ट. लास्ट टाइम अपना बात हुआ था तब. करेक्ट सर. या तो उनके बाद भी उन्होंने काफी कुछ करेक्शन किया है. डे टू डे अमेंडमेंट आते रहते हैं एक्ट में. और तो on that day the e-invoicing was not implemented. करेक्ट सर. करेक्ट. Meeting was before that, and now it is already implemented. करेक्ट. yes. So he will have to highlight in that way only. Correct sir. Correct. So जो practical, so the thought process is sir, after I cover the background as well as the legal background, Vaishali will take us through what are the practical challenges जो आए हैं. जितना हो सकता है कि वैशाली knows Gujarati language as well, so she will try to share with us all in Gujarati, English, जो भी comfortable है. Okay, very good. What are the teething challenges which most of the people face जब 500 करोड़ का implementation हुआ था, plus अभी जो 100 करोड़ का implementation वो already कर रहे हैं आइरिस का टीम. That is likely to challenges भी वो share करेंगे जितना. 1st January I think. हाँ, ताकि हम सब या हमारे clients के लिए वो अवॉइड कर सके. एंड जब क्लाइंट से बात करते हैं तो क्लाइंट को भी लगता है अच्छा ये सब प्रॉब्लम, जब हम उनके साथ बात करते हैं तो उनको भी लगता है कि यस वी आर वेल इन्फॉर्म अबाउट द चैलेंजेस. વૈશાલી બેન તમે પણ ગુજરાતી ઇંગ્લિશ મિક્સ આપજો, જેથી કારણે અમારે બધા મેજોરિટી ગુજરાતી છે. હા ચાલશે. એટલે તમે બને તો મિક્સ જ આપજો, નો પ્રોબ્લેમ. ચાલશે. ग्रेट. नमस्ते वारिस जी. Namaste. How are you, sir? I am good. How are you? I am fine, sir. Great. Hello, Vaishali ji, how are you? I'm fine, sir. How are you? Good. I am fine, sir. Good afternoon, Soni Sahib, Sunil bhai, Bharat bhai. Good afternoon sir. ગુડ આફ્ટરનૂન. Karthik abhi મજામાં શાંતિ કાકા મજામાં? છો? Good afternoon sir. હા. Pratik bhai, all well. Nigam All bhai, well, sir. All well, sir. बिल्कुल है, all well, sir. So right now we are 36 members in this group. ઘણા ઓછા છે અત્યારે આ વખતે, પણ with kind permission જ્યારે પણ પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ all the association મને પરમિટ કરે એટલે I can start. આમાં તો ધીરે ધીરે બધા જોઈન થશે. થોડુંક આપણે શરૂ કરીએ, આપણી ફોર્માલિટી કરીએ ત્યાં સુધીમાં બધા આવી જશે લગભગ. Right. बिल्कुल सर. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. बिल्कुल सर. फ्रेंड्स, एक्चुअली અત્યારે ગુજરાત સ્ટેટ બાર એસોસિએશન, ટેક્સ એડવોકેટ એસોસિએશન ઓફ ગુજરાત, all Gujarat Federation of Tax Consultants, and ultimately National Association of Tax Practitioners. All three
all four associations are welcoming you without wasting of time. As per our gesture, you must be aware that today's lecture is on the issue of e-invoicing, and it's a practical challenges we are going to deal. Now, as per our protocol and as per our system, I am requesting President of Gujarat Sussex Bar Association, Mr. P.K. Soni, to give his welcome speech. Mr. P.K. Soni, sir. Everybody, all the dignitaries of the all associations and friends, participant friends. Today, we have been able to arrange this webinar on the new provisions of e-invoicing. And Mr. Mathur, Mr. Mahure had been in my contact formerly. So we arranged with and he consented to deliver his lecture on this issue. Dear friends, today e-invoicing is about more than 500 and likely to be in near future at about 100, and thereafter government intention is to implement in all the cases, and therefore this importance of this subject is very much related to us as well as dealer. So that is why this program is arranged today. I welcome all the participants and dignitaries at this juncture. Okay. Thank you very much, sir. Highly obliged. Now, sir, I am requesting Mr. Sunil Keswani, President of Tax Advocate of Gujarat, for giving his speech on welcome. Mr. Sunil bhai. Thank you, Nigam bhai. Eminent speakers of the day, CA Pritam Mahure ji, co-speaker Vaishali madam, President of the Gujarat Sales Tax Bar Association P.K. Soni sir, President of the AGFTC Bharat Bhai Sheth sir, founder member of NATP Nigam bhai, convener of Study Circle of Tax Advocate Association and the past President of Gujarat Sales Tax Bar Association as well as Tax Advocate Association Vari Sitani ji. Dear friends, I welcome you all on this very important topic of e-invoicing. As P.K. Soni sir said, that within a very short time, we all think that the 500 crore limit would be reduced to 100 crore. As a student of law, I'm sure we all would have gone through the basic fundamental provisions of the same, but there would be many more intricacies with regard to invoicing, because this concept is new, and as the topic says, that there would be so many challenges which the dealer as well as the practitioner, may it be an advocate, chartered accountant, or the practitioner would be facing so far as the implementation on the level of the client or at the office of the consultant is concerned. I'm sure we have a very good speaker in Pritam ji. P.K. Soni sir has already heard him and vouched for the same, and we all would be having a wonderful session that would be followed by the technical session by Madam Vaishali. I'm sure that this would be a very technical and very learning experience for all of us, so that we would be prepared and our clients would also be prepared in the time to come, so far as e-invoicing is concerned. Thank you, and back to Nigam ji. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Friends, you must be aware that Mr. Bharat Sheth, who is the President of all Gujarat Federation of Tax Consultants, is also with us. I am requesting to Mr. Bharat Sheth to give a welcome speech. नमस्कार। सबसे पहले तो विक्रम संवत 2077 के नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये साल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इसलिए है कि ये स्वास्थ्य हमारे सबका ठीक रहे और ये कोविड-19 की परिस्थिति जो है उसमें से हम बाहर निकल जाए। आज के वेबिनार के हमारे एमिनेंट स्पीकर श्री प्रीतम जी और मैडम वैशाली जी, गुजरात सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर इन द प्रोफेशन श्री पी.के. सोनी साहब, सेक्रेटरी उद्यन भाई, सेक्रेटरी आउट स्टेशन एंड हमारे ऑल गुजरात फेडरेशन के नॉर्थ जोन के वाइस प्रेसिडेंट शांति भाई ठक्कर, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अरविंद भाई गोदाना जी, मेरे युवा मित्र और सेक्रेटरी विश्वेश भाई शाह,
वेबिनार कमेटी के चेयरमैन श्री कार्तिकेय भाई शाह, नेशनल एसोसिएशन ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के फाउंडर मेंबर और इस वेबिनार के मॉडरेटर श्री निगम भाई शाह, और उसके साथ पूरे हिंदुस्तान में जो घूमकर सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाले अक्षत भाई व्यास, टैक्स एडवोकेशन एसोसिएशन गुजरात के यंग एंड डायनामिक प्रेसिडेंट श्री सुनील भाई केशवानी, सेक्रेटरी प्रतीक भाई पटेल, एंड कन्वीनर ऑफ द स्टडी सर्कल, वेरी लर्न एंड स्टूडियस माय फ्रेंड वारिस भाई ईशानी, और ज्ञान प्राप्ति के उत्सुक हम सब पार्टिसिपेंट्स, आप सबका इस वेबिनार में तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। जब से जीएसटी आया है बहुत सारी दिक्कतें हमने फेस की है। जितने भी नए अमेंडमेंट आए हैं या तो उसको पोस्टपोन किया गया है या तो उसको सस्पेंड किया गया है। एक इनवॉइसेस आज का जो सब्जेक्ट है, इन इनवॉइसिंग इन इंडिया, कॉन्सेप्ट एंड चैलेंजेस, बहुत सारी चैलेंजेस हमें अभी फेस करनी है। जब जीएसटी हेलो मेरी आवाज आ रही है? कंटिन्यू सर। ओके। जब जीएसटी आया तो बहुत सारे जोक्स ऊपर वेबिनार में कार्टून और मीम्स बने थे। एक जोक्स आज के समय में भी इतना ही रिलेवेंट है। मैं इस जोक से बात शुरू करना चाहूँगा। हमारे एक दोस्त की उसकी बीवी के साथ हर बार जब अनबन होती थी और अनबन के अंत में उसकी बीवी वहाँ से उठ के चली जाती थी और बोलती थी जीएसटी। 2-3 बार ऐसा हुआ तो एक बार उसने अपनी बीवी को बिठा के बोला कि ये जीएसटी है क्या, तो उसने कहा गलती सब तुम्हारी। अब सरकार भी वही कर रही है जीएसटी। हम 19-20 तारीख को जब रिटर्न फाइल करना बैठते हैं या तो साइट लो हो जाती है या साइट बंद हो जाती है। हम जब रिप्रेजेंट करने जाते हैं कि भाई साइट 19-20 को चली नहीं थी, 2 दिन बढ़ा दीजिए या 15 दिन बढ़ा दीजिए, तब सरकार हमें क्या कहती है कि गलती सब तुम्हारी है, आप 1 तारीख से 18 तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, 19 का इंतजार करते हैं। तो यही होना था। तो ऐसी ही बात सब जगह पे आती है कि गलती रजिस्टर्ड पर्सन की है या तो टैक्स प्रोफेशनल्स की। तो जीएसटी में जो बार बार नई नई चीजें आ रही है और जीएसटी नेटवर्क का हम सबको पूरा परिचय हो चुका है। बोगस डीलर का भी भावनगर तो बोगस डीलर का हब बन चुका है। उसके बारे में भी जब हम किसी की रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ भी जवाब तो यही आता है कि गलती सब तुम्हारी। लूप होल रह गया है। जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 3 साल हो गए, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है और इसी का फायदा उठाकर ये लोग बना रहे हैं बोगस डीलिंग। तो वहाँ भी गलती तो हमारी है कि लूप होल का जो यूज कर रहे हैं लोग। तो सरकार की यही अगर रही तो ई इनवॉइस में भी बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, जैसे ई वे बिल में आई थी। तो हम ये बात आज समझ सके इसलिए बहुत ही एमिनेंट स्पीकर को सोनी साहब ने इनवाइट किया है और ये चारों एसोसिएशन एक साथ मिलकर ये वेबिनार कर रहे हैं। सबका इस वेबिनार में मैं सबका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का लुक थोड़ा आप लोगों को अलग लगा होगा, लेकिन कल मेरा कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ है, इसलिए ये लेंस मुझे पहनना पड़ रहा है। सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और नए साल की शुभकामना देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Bharat bhai. Thank you very much. First of all, we thank you very much कि आप join हो पा रहे हैं. Looking to your health. Once again, thank you very much. And, friends, as usual, as per our circulation, हमारे साथ CM Mr. प्रीतम महुरे and Miss वैशाली देहरिया हमारे साथ में है. They are delivering about e-invoicing. And for the same, Honorable Secretary Mr. Santilal Thakkar of Gujarat Tax Bar Association, I am requesting Mr. Santilal Thakkar to give virtual bouquet to Mr. All are welcome. Thank you very much. Thank you, sir. So,
Thank you. छोटा सा डिस्कशन तो हुआ अबाउट दिस लेक्चर एंड सेमिनार, बट से हम नॉलेज ले रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन पण अभी जरूरी है। तो इसके लिए टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के स्टडी सर्कल के कन्वीनर, गुजरात स्टेट टैक्स वायलेशन लॉ एंड रिप्रेजेंटेशन कमिटी के कन्वीनर एंड very enthusiastic person, Mr. Varis Isani is with us, and मैं उनको Mr. Pritam जी का introduction दे। वारिस जी। Thank you, Nigam bhai. Good afternoon to everyone. The President of the Gujarat Sales Tax Bar Association, P.K. Soni sir. President of the Tax Advocate Association, Gujarat, Sunil bhai Keshwani. The founder member of National Association of Tax Practitioners, Akshat bhai Vyasji and Nigam bhai Shahji. And President of the All Gujarat Federation of Tax Consultants, Bharat bhai Shetji. Other office bearers, speakers of the day, and the dear participants. Today, friends, it's a very unique day for all of us that the 4 leading associations of Gujarat and having good reputations and positions in national level also, the associations are unitedly and jointly organizing this webinar on the very important subject, which is a need and time of the hour, where e-invoicing, the concept and challenges, is organizing this webinar jointly. Friends, we have 2 amazing speakers today going to talk on the technical aspects and legal aspects both. This duo will definitely lead us to the position where at the end of the webinar, I think we will able to know the all intricacy of e-invoicing. Friends, the first speaker whom I would like to introduce before this August gathering is CA Pritam Mahure. CA Pritam Mahure is a founder member and the founder president of his firm, Pritam Mahure and Associate, the firm who is specialized in the area of GST practice and having good reputations among the professional circle as well as in the business industries. Mr. Pritam has authored more than 15 books on GST, then Gulf VAT, and how to be future-proof. Now, when I read this future-proof, I had also a conversation with the speakers there. What do you mean by future-proof? Friends, we are aware that now the intelligence, artificial intelligence, the technological intelligence will be the future of the profession. Whether it is related to the professionals, whether it is related to the taxpayer, whether it is related to the department, and the future generation who is also going to join as far as this profession is concerned. The majority of the books which has been authored by today's speaker is on that aspect, which is very, very relevant and important. The one other more important aspect about today's speaker is, as he has, during my deliberation with him, he has informed me that these all books which he has authored are royalty-free books, and the e-version of these books are available. The reason for e-booklet is that Mr. Pritam was telling me that in the initial days of his education and the practice, he was having a lot of financial problem. And now he is going to give the services to the professionals or the students, those who are having some problems of the finance or who want to know the knowledge about the taxation. So for this, all books are e-versions are available and they are all are royalty free. So this is the kind of the temperament, this is the kind of the services which our professional brother and today's speaker is doing and doing for all of us. He has also shared all the books to me also, and in turn, after the end of the session, all the associations of this today's program will definitely share this booklet and the e-version to all the participants.
Friends, our today's speaker is invited as a columnist for leading media houses also. Our today's speaker has addressed conferences in India, in UAE, Oman, Bahrain, Kuwait, and other majority of the UAE and our country, different cities. Friends, he has been invited to deliver the lectures by ICAI, CII, NASIM, ASSOCHAM, NASOCOM, ICCI, MCCIA, and DCCIA. I would have a great privilege and proud to introduce our today's first speaker, CA Mr. Pritam Mahure, before this August gathering. Please a virtual clapping to the today's speaker. Thank you, Nigam bhai. Thank you, Varish ji. Friends, we have another speaker, co-speaker rather. She will help us to get knowledge for practical difficulties. For the same, I am requesting Vice President of Tax Advocate Association, Mr. Pinakin Patel, to give virtual bouquet to Ms. Vaishali. Thank you very much. Please, ma'am. Please, ma'am. On behalf of all association, we are welcoming both the speakers. Once further, we have chairman of webinar committee of All Gujarat Federation of Tax Consultants, Mr. Karthikeya B. Shah. I am requesting Mr. Karthikeya to give a short introduction of Ms. Vaishali. Please. Thank you, Nigam bhai. Respected dignitaries and members of all the professional associations of Gujarat, respected Vaishali Madam, Vaishali Dedhia Madam, she is a GM product head in IRIS GST. She is a qualified chartered accountant by profession. Vaishali Madam is the product head at e-invoicing solution at IRIS GST. Vaishali Madam is involved with designing product roadmap, researching market trends, understanding GST complexities, and translating the same at product level business and validation rules. Working on the domain side, she has chaired several GST events at CII and have also run several webinars on GST and e-invoicing. Madam, a warm welcome from all the professional associations of Gujarat. Thank you. Thank you, Karthik bhai. Thank you, Karthik bhai. Now, friends, Nigam bhai, with your permission, may I add one more thing, sir? please, sir. Please, sir. As I was having the conversation, Karthik bhai, with your kind permission. Sir. In the introduction of Vaishali ji, as I was talking with the Vaishali ji and Pritam ji today, Vaishali ji is having roots of the Gujarat. She is from the Kutch. तो आई जो बहुत स्वागत है वैशाली जी असा जे गुजरात जे वेबिनार में आई जो खूब स्वागत है. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So now go for with further action. Without wasting of much time, I am requesting to give his deliver regarding e-invoicing to Pritam bhai. पहले आपको स्क्रीन अभी शेयर करना है या बाद में करना है? Yes. Would you like to share your screen right now? Please, sir. Please. Yes, sir. Yes, sir. So is it visible now? Yours. Wonderful. Yes, thank you, sir. Thank you. Just. So thank you, sir. Thanks, Sunil ji, Soni ji, Isani ji, Patel ji, Shah ji, Seth ji, Vaz ji. I think and all the dignitaries whom unfortunately we could not personally meet, but it's a wonderful, I would say, एक ऐसा काफी सारे 4 एसोसिएशन के साथ जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है. इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज अ प्रोफेशनल टू शेयर आवर व्यूज. सो टिपिकली व्हाट वी हैव सीन दैट एज मुझे लगता है शेठ जी ने हाईलाइट किया दैट राइट फ्रॉम द डे व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस, तब से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस चैलेंजेस या कंटिन्यूअस चेंजेस ये जीएसटी में रहे हैं. एंड दैट हैज बीन आई वुड से वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड इन जीएसटी, बिकॉज अगर आप ग्लोबली देखेंगे, ग्लोबली लगभग 165 कंट्री में जीएसटी या वैट लॉ है. हर कंट्री में 2 टाइप के पैटर्न दिखे गए हैं. एक, कोई कंट्री में बहुत ही उन्होंने कॉम्प्लेक्स जीएसटी या वैट लॉ इंट्रोड्यूस किया था
एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने उस लॉ को सिंपल 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 करते गए, यानी कॉम्प्लेक्सिटी से वो सिंप्लिसिटी में आ गए। कुछ कंट्रीज ने बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक लॉ लाया था, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स करते गए, बिकॉज वो निटिग्रिटी जिस तरह से इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेशन आए वो सब रिप्रेजेंटेशन ऐड करके उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया था। आई थिंक इंडिया एक अकेला जुरिडिक्शन रहेगा 165 कंट्रीज जिसमें जीएसटी लॉ है, जहां पर हमने कॉम्प्लेक्सिटी से चालू किया और हम उसको और फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। आई थिंक दैट इज वन कैन से इज अ यूनिक proposition of Indian GST law. And because we are working in this kind of a structure wherein from complexity we are moving to another level of complexity, I think जितने भी हम टैक्स प्रोफेशनल है, जितने भी एडवोकेट्स है, जितने भी इंडस्ट्री मेंबर्स है, एवरीबडी हैज टू बी एक्चुअली ऑन देयर टोज। जब से जीएसटी आया तब से लेके आज तक एवरी डे, बिकॉज हमको कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ अमेंडमेंट या सर्कुलर या एडवांस रूलिंग जब तक देखते नहीं दिन भर में, तब तक तो लगता है कि दिन ही चालू नहीं हुआ है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी फर्स्ट थिंग जब हम डिस्कस करेंगे तो पहले समझते हैं कि ई इनवॉइसिंग ये क्या है, यानी कि जिसके बारे में आज हमारा जो वेबिनार के ऊपर डिस्कशन है। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग? फ्रेंड्स, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। ई इनवॉइसिंग टिपिकली हम फिजिकल जो इनवॉइस की बात करते हैं, जो पेपर इनवॉइस होता है, एज कंपेयर टू दैट ई इनवॉइस इज ए इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ए इनवॉइस। उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहेंगे तो हम कह सकते हो कि एक्सेल शीट में कुछ डेटा है, बराबर है, जिसको जेसन फाइल कहा जाता है। वो जेसन फाइल इज एज गुड एज ई इनवॉइस, यानी कुछ डिटेल जो इनवॉइस के है, नाम है आपका, डेट है वगैरह, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है, जिसको आप ई इनवॉइस कह सकते हो। उसके बारे में और आगे हम ज्यादा क्लैरिटी लेंगे और और ज्यादा डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई ई इनवॉइसिंग is being proposed by India and why it has been proposed by all other countries across the world. So friends, अगर आप ग्लोबली देखेंगे e-invoicing as a concept ये काफी सारे कंट्रीज मैंडेटरीली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज कि ग्लोबली काफी सारे कंट्रीज में जीएसटी या वैट इवेजन या फ्रॉड्स, इसका जो और क्या कहते हैं क्वांटम है, वो बहुत बढ़ रहा है। एंड दैट इज द रीजन द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू मेक ई इनवॉइसिंग कंपल्सरी। अभी सबसे जो बड़ा एडवांटेज गवर्नमेंट्स को मिलता है ई इनवॉइस की वजह से, वो ये है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ई इनवॉइस में आप एज अ टैक्स पेयर जिसके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, उसको बिफोर यू इशू इनवॉइस टू योर कस्टमर, हमको यानी कि यू आर एक्सपेक्टेड टू इशू दैट इनवॉइस, यू आर एक्सपेक्टेड टू शेयर दैट डेटा विद द गवर्नमेंट। यानी बिफोर यू शेयर द इनवॉइस विद योर कस्टमर, यू आर एक्सपेक्टेड टू शेयर द डेटा ऑफ योर इनवॉइस विद द गवर्नमेंट। तो उससे सबसे मेन क्या चीज हो जाती है, द बिगेस्ट एडवांटेज विच द गवर्नमेंट गेट्स इट, कि टिपिकली एक बार रियल टाइम आपने रिपोर्टिंग कर दिया, ऑटोमेटिकली बाद में जो चेंजेस होते हैं, कोई भी सप्लायर टिपिकली नहीं कि महीने भर में अगर आपका एक 100 रुपीज का सेल हुआ है तो जीएसटीआर 1 या 3 भी फाइल करते वक्त काफी सारे लोग अंडर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी निकल जाता है बिकॉज आप रियल टाइम बेसिस पे इनवॉइसेस गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे हो। एडिशनली ये जो इनवॉइस का डेटा है ये पूरा गवर्नमेंट के पास मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जाता है, और वो भी रियल टाइम, यानी पहले आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा ई इनवॉइस, और उसके बाद ही आप उसको कस्टमर को शेयर करोगे। यानी कि इवन बिफोर यू शेयर इट विद द कस्टमर, यू आर एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट दैट डेटा विद द गवर्नमेंट। बट फ्रेंड्स, इससे सबसे जो मुझे लगता है कि चैलेंज जो क्रिएट होने वाला है, और वो सबसे बड़ा चैलेंज है सब टैक्स पेयर के लिए, वो ये है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट द डेटा विद द गवर्नमेंट ऑन अ रियल टाइम बेसिस। अभी आप कहोगे भैया रियल टाइम बेसिस यानी क्या? यानी कि एवरी डे एवरी मोमेंट जब भी आपको कस्टमर को इनवॉइस देना है, उसके पहले आपको गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना है। यानी आपको ऑल द टाइम प्रैक्टिकली आपको ऑनलाइन रहना है। तो आप कहोगे ऑनलाइन गवर्नमेंट क्यों चाहता है कि हम ऑनलाइन रहे? तो मुझे लग रहा है कि एज ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम एनीवेज वी आर ऑनलाइन, या तो हम फेसबुक पे है या तो हम सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे ऑल द टाइम ऑनलाइन है। तो गवर्नमेंट कह रहा है आप उधर फोटो तो डालते रहते हो ना ऑल द टाइम, तो अभी इनवॉइस भी डाला करो। दिन भर में तो आप फोटो डालते रहते हो, बराबर है। तो द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट यू आल्सो अपलोड द इनवॉइसेस। मुझे लगता है कुछ दिन बाद ई इनवॉइसिंग में एक फैसिलिटी भी आ जाएगा। जैसा ही आप ई इनवॉइस अपलोड करोगे ना पोर्टल पे, शायद कि गवर्नमेंट ऑफिसर उधर बैठा है, वो लाइक का भी बटन दबा दे, यू नेवर नो। बट जोक्स अपार्ट, कि why the government wants the data of all the invoices on real time basis, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए ये डेटा इनवॉइसेस का? तो फ्रेंड, वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन फॉर दैट इज, अगर मुझे किसी का भी बिजनेस समझना है, अगर मुझे समझना है
कि ईशानी जी क्या करते हैं, मुझे समझना है, शाह जी क्या करते हैं, सोनी जी क्या करते हैं, उनका बिजनेस क्या है, अगर मुझे समझना है तो मुझे क्या करना है, उनके आउटवर्ड सप्लाई यानी उनका सेल का मुझे इनवॉइसेस देखना है कि किसको ये सेल कर रहे हैं। हेलो हेलो सर, कोई एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible, sir. परफेक्ट, सुपर सुपर। तो सर हम वही कह रहे थे कि अगर मुझे किसी भी कंपनी का बिजनेस का अगर मुझे समझना है कि वो एक्टिविटी क्या करता है, तो एज ए गवर्नमेंट मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ उनका इनवॉइस को कॉपी चाहिए, सेल क्या कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, एंड परचेस क्या कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली मुझे उनका एंटायर यानी वो नाड़ी बोलते हैं ना, नब्ज, तो ये इट इज एज गुड एज अ पल्स, इनवॉइस इज पल्स ऑफ द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट वांट टू गेट होल्ड ऑफ दैट पल्स, ताकि पता चलेगा ये पर्सन क्या परचेस कर रहा है और क्या सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है। उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास जो डेटा आएगा, तो गवर्नमेंट हैज वेरियस टूल्स जिसको हम डेटा एनालिटिक्स टूल कहते हैं। वो टूल के बेसिस पे गवर्नमेंट को रियल टाइम बेसिस पे पता चलेगा अगर कोई पर्सन फ्रॉड कर रहा है तो, एंड उसको फिर स्टॉप किया जा सकता है। एंड इसीलिए अभी आपके टैक्स पेयर को, बिकॉज अभी लगभग 100 करोड़ के आगे वाले टैक्स पेयर को 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। बट प्लीज नोट करिए, और हम ये डिस्कस भी करेंगे कि जो छोटे वाले टैक्स पेयर है 5 करोड़ के अबो, 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक, उनको भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट वाले फेज में। और उससे क्या हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट को कहीं पर भी पता चलता है कोई फ्रॉड हो रहा है रियल टाइम बेसिस पे, तो आपको जो इनवॉइस जो है वो गवर्नमेंट वैलिडेट नहीं करेगा, यानी उसका आईआरएनई जनरेट नहीं करेगा, यानी रियल टाइम पे आपका इनवॉइस या बिजनेस स्टॉप करने का कैपेबिलिटी आ जाएगा गवर्नमेंट में। अभी क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है, लेकिन वो 2 या 3 महीने बाद होता है। अगर आपका इनवॉइस रेज करवाना ही बंद कर दिया प्रैक्टिकली, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसा आज होता है, ई वे बिल अगर स्टॉप करवा दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हो पाता है, लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस तो हो पाता है ना, बिकॉज सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए ई वे बिल है नहीं। तो प्रैक्टिकली सप्लाई ऑफ सर्विस भी स्टॉप किया जा सकता है अगर उसको आईआरएन जनरेट नहीं किया दिया गया तो। एंड दैट द रीजन मुझे लगता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास, ऑफिसर्स के पास ई इनवॉइसिंग के बाद और एक एडिशनल पावर आ जाएगा। एंड दैट द रीजन हम सबको ई इनवॉइस समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आप सबने देखा रहेगा कि जीएसटी आने के पहले एक्साइज और सर्विस टैक्स लॉ में आपने सबने इंस्पेक्टर का कंसेप्ट देखा रहेगा, जो फिजिकल फैक्ट्री गेट पे होते थे। अभी अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इंस्पेक्टर जो फिजिकली गेट पे बैठे होते थे वो तो चले गए अभी, लेकिन अभी डिजिटल इंस्पेक्टर आ गए हैं। क्यों? बिकॉज डिजिटली अभी आपको गवर्नमेंट को बिफोर यू कैन सेंड द गुड्स, पहले तो फैक्ट्री के बाहर निकलने के पहले आपको साइन करवाना पड़ता था, बराबर है। अगर आप दुकानदार है तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, बिकॉज सिर्फ एक्साइज में फैक्ट्री गेट में एक इंस्पेक्टर बैठता था। लेकिन अभी जीएसटी आने के बाद आपके दुकान में, वेयर हाउस में, प्रैक्टिकली फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, हर जगह पर प्रैक्टिकली डिजिटली अभी गवर्नमेंट प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है आप कह सकते हो। और जब तक आप गवर्नमेंट को डेटा या इनवॉइस शेयर नहीं करोगे, आप कस्टमर को दे नहीं पाओगे। अभी जो ई इनवॉइस का कंसेप्ट है, आप कहोगे कि इंडिया में पहली बार लाया जा रहा है, बट इसका कोई ग्लोबल प्रेसिडेंस है क्या? तो सर्टेनली फ्रेंड्स, काफी सारे कंट्रीज में ई इनवॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया है। साउथ कोरिया, जर्मनी एंड इवन यूरोपियन यूनियन ने भी इसके बारे में रिकमेंडेशन दिया है कि दैट दे शुड हैव दिस कंसेप्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग। बट प्लीज नोट करिएगा, उनमें और हम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आई वुड से इज दैट काफी सारे कंट्रीज ने लगभग 3 साल का ट्रांजिशन टाइम दिया है। अगेन वी आर एक्सट्रीमली यूनिक। यहाँ पर भी हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, छोड़ी यानी मुझे लगता है ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। अक्टूबर में हमको बताया गया है कि 1 जनवरी 2021 से यानी विद इन 60 डेज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा अबो 100 करोड़ टैक्स पेयर्स के लिए। एंड दैट द रीजन अगेन एज अ टैक्स पेयर पूरा ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाता है वो आ जाता है टैक्स पेयर के ऊपर कि भैया शॉर्ट टाइम में उनको रेडी होना है। एंड जैसा शेठ जी ने मेंशन किया था और बाकी काफी टीम मेंबर ने हाईलाइट किया है, इवन सुनील जी ने, कि ये चैलेंजेस जब भी आते हैं तो पूरा ब्लेम जो है जीएसटीएन रहेगा, पोर्टर रहेगा, अगेन टैक्स पेयर के ऊपर डाल देता है। एंड दैट द रीजन एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एज अ टैक्स पेयर, आई थिंक ओनस इज ऑन अस टू इंश्योर दैट वी आर प्रिपेयर्ड वेल अहेड ऑफ टाइम। अदरवाइज अगर पोर्टल डाउन रहेगा वगैरह तो कुछ भी चैलेंजेस आएंगे तो आपका 31st का नाइट और 1 जनवरी जो फर्स्ट डे है आपका नया साल का, वो तो फिर गया। करेक्ट? सो दैट द रीजन स्टार्ट अर्ली, दैट इज व्हाट वी कैन से। नाउ यू विल से किसने स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ई इनवॉइसिंग किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन पर्सन है जिसके लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा? तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, ई इनवॉइसिंग सबके लिए एप्लीकेबल है। एक फंडामेंटल तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सबके पास है
कि 100 करोड़ के ऊपर वाला जो टैक्स पेयर है उसके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होने वाला है 1 जनवरी 2021 से। 1 अक्टूबर 2020 को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हुआ था अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है तो, बराबर है। तो एज अ सप्लायर एक क्राइटेरिया है कि वेदर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल टू यू और नॉट। अगर आपको एप्लीकेबल है तो आपको ई इनवॉइसेस आपके कस्टमर को इश्यू करने हैं। लेकिन अगर आज आपका टर्नओवर 50 करोड़ है तो भी मैं कहूंगा आपको इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। कैसे कि एज ए रिसिपिएंट अगर आप किसी से गुड्स परचेस कर रहे हो, अगर आप टाटा मोटर से कोई गुड्स परचेस कर रहे हो, अगर आप टाटा स्टील से कोई गुड्स परचेस कर रहे हो, इन्फोसिस से कोई सॉफ्टवेयर ले रहे हो, तो प्रैक्टिकली जो कंपनी कर रहा हूं इनके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। तो एज अ बायर, एज ए रिसिपिएंट आपको इंश्योर करना है कि इनके पास से आपके पास ई इनवॉइसेस आए। आप कहोगे ठीक है यार मैं क्यों इंश्योर करूँ, तो उनका सर दर्द है। उसका रीजन ये है, अगर आपके पास ई इनवॉइस आना चाहिए था और अगर आपके पास ई इनवॉइस का कॉपी नहीं है तो एज ए रिसिपिएंट आपका राइट टू क्लेम क्रेडिट विल गेट जियोपार्टाइज, यानी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसा आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बोगस इनवॉइस में, मुझे पता ही नहीं वो सप्लायर बोगस है, बराबर है। मैंने कुछ सर्विस लिया उससे और बाद में पता चला वो फेक डीलिंग में इन्वॉल्व था, तो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जियोपार्टाइज हो जाएगा। तो सिमिलरली ई इनवॉइस में भी सिमिलर रिस्क है। अगर जिस कंपनी से मैंने परचेस किया अगर उन्होंने ई इनवॉइस नहीं दिया मुझे तो मेरा राइट टू क्लेम क्रेडिट कैन बी जियोपार्टाइज। और वो कैसे होगा उसके बारे में हम लीगली बात करेंगे, रूल 48(5) जब डिस्कस करेंगे। तो सो लेट डिस्कस कि ई इनवॉइसिंग अभी इंडिया में जब आ रहा है 1 जनवरी 2021 से, अब वो 100 करोड़ टैक्स पेयर के लिए, उसके पहले क्या हुआ था मुझे लगता है आप सबको पता है फ्रेंड्स कि 1 जुलाई 2017 जब जीएसटी आया था उस टाइम पे हमको कहा गया था कि देयर वुड बी ए कांसेप्ट कॉल्ड ए जीएसटीआर 1, 2, 3। वो 1, 2, 3 तो कभी हुआ नहीं प्रैक्टिकली, एंड बीच में हमको कहा गया कि जीएसटीआर 1 और 3 भी आएगा, बराबर है, बिकॉज पोर्टल वाज नॉट रेडी। उसके बाद 18-19 में गवर्नमेंट ने इनवॉइस मैचिंग का कंसेप्ट लाया कि आपको तभी क्रेडिट मिलेगा जब इनवॉइसेस मैच हो जाएंगे। अक्टूबर 2019 से आप सबको पता है कि पहले 20% रेस्ट्रिक्शन लाया गया था, बाद में उसको 10% कर दिया। हो सकता है आगे कहेंगे जितना ऑनलाइन दिख रहा है उतना ही क्रेडिट मिलेगा, उसके ऊपर 1 रुपये भी एडिशनल क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड 2021 में गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट लाया है। यानी आप देख सकते हैं जीएसटी लॉ में 1 जुलाई 2017 से लेके अभी तक आप देखेंगे 3.5 साल हुए हैं, बराबर है, अराउंड 41 मंथ्स। ये 41 मंथ्स में प्रैक्टिकली जीएसटी एक्ट जो है वो 3 बार अमेंड हो चुका है। जो रूल्स है मोर देन 50 टाइम्स, यानी हमने नंबर ऑफ मंथ्स कितने काउंट किए, 41 मंथ्स हुए हैं, लेकिन रूल्स अमेंड हुए 51 टाइम्स। अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स लगभग आप टोटल ऐड करेंगे ना तो 1000+ नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आए हैं। एडवांस रूलिंग के तो क्या कहने, लगभग 1,500-2 हजार के ऊपर तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं। कॉन्ट्ररी को एक ही इश्यू पे 2 एडवांस रूलिंग, वो तो अलग ही बात है, करेक्ट। तो वो एंड उसके ऊपर नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर जो आते हैं तो कभी कभी वो सर्कुलर को विड्रॉ कर दिया जाता है। जैसा आईटीएस का सॉफ्टवेयर का एक आया था एक्सपोर्ट के रिलेटेड, उसको विड्रॉ कर लिया गया था। डिस्काउंट का एक आया था, उसको विड्रॉ कर लिया। एंड नोटिफिकेशन में बाद में करेक्शन डाल देते हैं एंड उसके बाद में उसको फिर से अमेंड कर लेते हैं बार बार। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज विच ऑल द टैक्स प्रोफेशनल्स आर फेसिंग कि लॉ इज कंटिन्यूअसली इन अ फ्लूइड स्टेज, यस फ्लूइड स्टेट। बट लॉ का अगर आपको चेंजेस है तो हम समझ सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, बट सबसे बड़ा चैलेंज एज अ प्रोफेशनल हम फेस कर रहे हैं कि टैक्स लॉ इज अंडरगोइंग चेंज, बट एट द सेम टाइम इवन द टैक्स टेक्नोलॉजी इज अंडरगोइंग चेंज। यानी मैं एक्ट और रूल्स और सर्कुलर को समझ के, इवन जजमेंट्स को समझ के कोई पोजीशन लेता हूं कि मुझे ऐसा करना है, जब मैं जीएसटी पोर्टल पे जाता हूं वो काम ही नहीं करता है। वो कहेंगे कि इनवॉइस आप क्रेडिट नोट कंसोलिडेटेड इशू कर सकते हैं, लेकिन जीएसटीएन के पोर्टल पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरह के काफी ग्लिचेस, काफी चैलेंजेस हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी फ्रंट पे, एंड दैट द रीजन आपने देखा रहेगा 3.5 साल में मुझे लगता है जीएसटी जो प्रोफेशनल है, अगर आप उसको पूछोगे, अगर आप मुझे पूछोगे प्रीतम आपका 3.5 साल में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो मैं कहूंगा कि आई सर्वाइव्ड, मैं सर्वाइव कर गया, वही मेरा अचीवमेंट है। जैसा कोविड में है ना, कोविड में अगले साल कोई पूछेगा कि भैया कोविड के ड्यूरिंग तेरा अचीवमेंट क्या है, तो आप कहोगे मैं सर्वाइव कर गया, वही अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है कि सेम अचीवमेंट हमको जीएसटी के बारे में भी हम कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम देखते हैं ई इनवॉइसिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में हो रहा है, उसको जैसा हमने डिस्कस किया है दैट इट इज इन फेज वाइज मैनर वी आर डूइंग। फॉर्चुनेटली आई वुड से, बिकॉज उससे थोड़ा
एक बर्डन कम हो जाता है। बिकॉज पहले फेज में गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ जब 500 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो ही आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, 500 करोड़ से कम है तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो फेज है ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, यानी 500 करोड़ के अबो अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइसिंग गवर्नमेंट ने मैंडेटरीली एप्लीकेबल कर दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग अभी एप्लीकेबल है एज वी स्पीक, अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो, बराबर है। अभी हम जाने वाले हैं फेज 2 में, और फेज 2 कब से चालू होने वाला है? 1 जनवरी 2021 से। और उस फेज 2 में क्या होने वाला है? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ के आगे है, यानी 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक आप कह सकते हो, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के आगे है उसके लिए 1 जनवरी 2021 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी काफी सारे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने शेयर किया कि बेसिकली इवन स्मॉलर टैक्स पेयर के लिए भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जितना जीएसटी काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अथॉरिटीज या ऑफिसर्स के साथ डिस्कशन होता रहता है, उसमें से हमको जो पता चला है, इट इज लाइकली कि इनिशियल ईयर्स में ई इनवॉइसिंग जो एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ 5 करोड़ के अबो टैक्स पेयर को एप्लीकेबल होगा। यानी जो स्मॉलर टैक्स पेयर्स है उनके लिए इनिशियल डेज में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन यही है कि एवरीबडी शुड एक्चुअली इश्यू अ ई इनवॉइस, यानी बिफोर आप कस्टमर को इनवॉइस दो, आपने गवर्नमेंट को वो डेटा देना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट द रीजन इन डेज टू कम, अगर आपको अभी लग रहा है कि आपका जो क्लाइंट बेस है या आपका कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 80 करोड़ है, तो जस्ट वेट फॉर जस्ट कपल ऑफ मंथ्स, ई इनवॉइसिंग वुड बी एप्लीकेबल टू देम जस्ट इन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स एज पर सम ऑफ द डिस्कशन जो न्यूज पोर्टल में अलग अलग जगह पर है। उसके हिसाब से 1 अप्रैल 2021 से जो 5 करोड़ के अबो टर्नओवर वाले जितनी भी कंपनी है सबको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी बहुत बार हमारा एज अ टैक्स प्रोफेशनल क्या हो जाता है, जब हम ड्यू डेट की बात करते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो एक डायरेक्शन में काम करता है। जैसे अगर मैं कहूंगा 31 दिसंबर इज ड्यू डेट फॉर जीएसटीआर 99C, तो हमको लगता है कि 31 दिसंबर को पूरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ काम ही नहीं है, बराबर, बिकॉज ड्यू डेट यानी एंड डेट। बट इस टाइम में इट इज नॉट एंड डेट। ई इनवॉइसिंग में क्या है, 1 जनवरी 2021 ये स्टार्ट डेट है। अगर आपका टर्नओवर समझो 25 करोड़ है तो आपके लिए स्टार्ट डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 2021। उसके बाद आपको ऑल द टाइम इनवॉइसेस अपलोड करने हैं ऑनलाइन, इटर्निटी तक, जब तक कंपनी चलेगा तब तक ऑनलाइन वो रहेगा प्रैक्टिकली। एंड दैट द रीजन ये एंड डेट नहीं है, और इसके लिए अपना जो प्रिपरेशन है वो कोई एक डेट के लिए नहीं काम कर रहे हैं। अभी हम एज अ प्रोफेशनल वी हैव टू वर्क एवरी डे, बिकॉज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी को जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, समझो आपका कोई कस्टमर है, क्लाइंट है जिसका 150 करोड़ का टर्नओवर है, तो 1 जनवरी 2021 को इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन बीच में कोई भी चैलेंजेस आएगा, फॉर एग्जांपल कभी ई इनवॉइस पोर्टल नहीं चल रहा है, आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, कोई टीथिंग चैलेंजेस आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आपको is the start date of the journey. It is not the destination, but it is actually the start date of the journey. और जैसे हमने कहा कि ई इनवॉइसिंग जो है ये तो सिर्फ स्टार्ट है। जो द वे वी आर लुकिंग एट वेरियस थिंग्स, हमको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट इन डेज टू कम अलग अलग टाइप के ई या डिजिटल प्रोडक्ट्स लाएगा जहां से डेटा रियल टाइम पे गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। अभी इनवॉइस का डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि 3 टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करता है। वो कौन से है? आप कस्टमर के साथ एग्रीमेंट बनाते हो कि भैया मैं तुझे ये प्रोडक्ट ये रेट पे दूंगा, ये मेरा एग्रीमेंट है। हो सकता है गवर्नमेंट पहले अभी कुछ सालों बाद बोलेगा कि ई एग्रीमेंट होने चाहिए, ई परचेस ऑर्डर, बराबर है, ई इनवॉइस आप दो, एंड जो कस्टमर पेमेंट दे रहा है वो तो ऑलरेडी अभी आपके पास जो पेमेंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ऑनलाइन ही आ रहा है, यानी ई पेमेंट ही है। यानी हो सकता है कि वो जो पेमेंट आ रहा है वो भी रियल टाइम पे गवर्नमेंट आपको कहेगा कि आप रिपोर्ट करो। यानी एग्रीमेंट ई हो गया, ई एग्रीमेंट, ई इनवॉइस एंड इवन ई पेमेंट। तो आने वाले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी की वजह से अगले 2 या 3 साल में जो जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स का जो लैंडस्केप है बहुत ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है। एंड दैट द रीजन एज अ प्रोफेशनल आपको टेक्नोलॉजी को भी रियल टाइम पे ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ई इनवॉइसिंग के बैकग्राउंड के बारे में बात किया। अभी जब भी हम जीएसटी की बात करते हैं, विदाउट टैक्स लॉ आप कोई भी चीज जीएसटी में ला नहीं सकते, बराबर है। और उसके लिए आपको क्या अमेंड करना पड़ेगा? पहले तो एक्ट में पावर होनी चाहिए, फिर आपको रूल्स में वो चीज क्लैरिफाई या स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, एंड बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू आपको उसको नोटिफाई करना पड़ेगा।
तो अगर आप एक्ट के बारे में बात करोगे तो आपको सेक्शन 2 सब क्लास 66 है जिसमें टैक्स इनवॉइस की बात की गई है। सेक्शन 31 है जिसमें आपको कहा गया है कि आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। सेक्शन 16 है जिसमें कहा गया है कि आपको इनपुट टैक्स तभी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब आपके पास टैक्स इनवॉइस है। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ई इनवॉइसिंग की जब हम बात करेंगे तो ये 3 मुझे लगता है सेक्शन है जो एक्ट के जो रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। रूल्स की बात करेंगे तो आप सबको पता है रूल 46 टैक्स इनवॉइसेस के बारे में बात करता है। 46 से टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है। अभी बिल ऑफ सप्लाई की मैं क्यों यहाँ पर बात हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू लुक एट बिल ऑफ सप्लाई इज बेसिकली इज इशूड फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो बहुत बार क्वेश्चन माइंड में आएगा कि अगर मेरा सप्लाई एग्जम्प्टेड है तो मुझे ई इनवॉइस देना है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। देन रूल 48, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ई इनवॉइस के लिए, बिकॉज रूल 48 में लिखा गया है कि आपको ई इनवॉइस किस तरह से इशू करना है। देन बात आता है स्पेशल केसेस की, बिकॉज कुछ लोगों को, कुछ टैक्स पेयर को एग्जम्पशन दिया गया है, एंड रूल 138 आप सबको पता रहेगा ई वे बिल के बारे में है। उसके बाद अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे, यानी कि आपको रूल देखेंगे तो लगभग 6 रूल के बारे में बात करनी है। एक्ट देखेंगे तो लगभग 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो लगभग 16 नोटिफिकेशन प्रैक्टिकली आपको देखने हैं। सभी आपको नहीं देखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ब्रॉडली ये 16 नोटिफिकेशन टोटल है जिसको आप ग्लांस थ्रू कर सकते हो। एंड फाइनली ये तीनों के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपको गवर्नमेंट का जो ई इनवॉइस का पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां पर जाके अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत बार उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए, एफएक्यू दिए है, वो जाके चेक करने पड़ेंगे। और ये भी देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एफएक्यू के आंसर चेंज होते रहते हैं। जैसा एक्ट चेंज होता है, रूल चेंज होता है, उसी तरह के एफएक्यू के आंसर भी चेंज होते हैं। सो वो भी आपको ध्यान देना है। नाउ फ्रेंड्स, जैसे हम कह रहे थे कि सेक्शन 2 सब क्लास 66 जो बात करता है टैक्स इनवॉइस की बात करता है, बराबर है। सेक्शन 31 कहता है कि आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, जब भी आप कोई टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हो तो। एंड उसी कंटेक्स्ट में रूल 48 जैसा हम बात कर रहे थे, प्रिस्क्राइब करता है कि एक मैनर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको इनवॉइस जो इशू करना है अभी इसी प्रिस्क्राइब मैनर से इशू करना है। पहले आप क्या करते थे, इनवॉइस कैसे देते थे? रूल 46 में कहा है लगभग 20 से 21 चीजें लिखी है उसमें। कस्टमर का नाम होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपका जीएसटीएन नंबर होना चाहिए, कस्टमर का जीएसटी नंबर होना चाहिए, अगर रजिस्टर्ड है तो डेट होनी चाहिए, एचएसएन नंबर होने चाहिए। वो सब कंटेंट उसमें प्रिस्क्राइब थे। आप वो इनवॉइस बनाते थे फिजिकली या तो मैन्युअली बनाते थे एक्सेल शीट पे, पीडीएफ पे, या आपके सॉफ्टवेयर से जनरेट करते थे एंड कस्टमर को दे देते थे। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ये जो आप इनवॉइस बना रहे हो ना, उसको अभी आपको प्रिस्क्राइब मैनर में बनाना है। प्रिस्क्राइब मैनर यानी कौन सा, कि गवर्नमेंट ने एक फॉर्म इनव 01 बनाया है, फॉर्म इनव 01, जीएसटी इनव 01। इस फॉर्म में अगर आप देखोगे वेरियस कंटेंट्स गवर्नमेंट ने मांगे हैं। अगर आप टोटल लोगे ना वो कंटेंट की, तो लगभग 130 चीजें गवर्नमेंट ने मांगी है। 130, हो सकता है कि 130 चीजें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन कम से कम 50-60 चीजें तो उसमें से एप्लीकेबल हो जाती है। और वो सब चीजें आपको गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में पंच करनी है, आपको ऐड करनी है। एंड ये जो डेटा है जिसको हम जेसन फाइल बोलते हैं, ये फाइल को आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके अपलोड करनी है। जैसे ही गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप अपलोड करोगे, आपको एक आईआरएन नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। और ये जो इनवॉइस नंबर है, प्रैक्टिकली आपको आपके इनवॉइस पे मेंशन करना है एंड वो इनवॉइस आपको कस्टमर को इशू करना है, एंड उसी को आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कहोगे। अभी इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली कैसे होने वाला क्या नहीं, वो उसके बारे में मेरी जो कलीग है सीए वैशाली, शी विल गिव अस मोर गाइडेंस। नाउ फ्रेंड्स, आप कहोगे यार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ई इनवॉइस तो मुझे गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके अपलोड करना है, जेसन फाइल आएगा, फिर आईआरएन नंबर आएगा, फिर मुझे ई इनवॉइस इशू करना है। मैं नहीं करता, मैं नॉर्मल इनवॉइस इशू करता हूँ। क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट जनरल पेनल्टी लगाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट करिएगा, रूल 48 सब क्लॉज 5 कहता है कि एवरी इनवॉइस हैज टू बी इशूड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। अगर आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो कंपलसरीली प्रिस्क्राइब मैनर में इशू करना है। अदरवाइज दैट डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट इशू करने वाले हो फिजिकल, अगर उसमें आईआरएन नंबर नहीं है तो उसको ई इनवॉइस ही ट्रीट नहीं किया जाएगा, यानी उसको इनवॉइस ही ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर उसको इनवॉइस करके ट्रीट नहीं किया गया तो इम्प्लीकेशन क्या है? तो इम्प्लीकेशन के लिए हमको जाना पड़ेगा सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 में लिखा गया है कि एवरी पर्सन कैन claim input tax credit only when he is having copy of the tax invoice। अगर रूल 48 सब क्लास 5 को बोलता है आपने जो डॉक्यूमेंट इशू किया है वो प्रिस्क्राइब मैनर में इशू नहीं किया,
तो वो डॉक्यूमेंट एक कागज का टुकड़ा है, वो इनवॉइस नहीं है। अगर वो इनवॉइस नहीं है तो आपका कस्टमर क्रेडिट नहीं ले पाएगा। एंड इसके लिए सबसे ध्यान इंपॉर्टेंट बात रखिएगा, अगर आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो कंपल्सरीली आपको ई इनवॉइस इशू करना है, अदरवाइज आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो राइट है क्रेडिट कस्टमर का वो चला जाएगा। एंड कस्टमर किसके पास आएगा? फिर आपके पास आएगा। यानी आपने तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, लेकिन कस्टमर बोलेगा मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, मैं आपसे रिकवर करूंगा। आपने बहुत बार देखा रहेगा, ये प्रैक्टिकल चैलेंज होता है कि आपने कस्टमर का जीएसटी नंबर गलत डाल दिया तो कस्टमर बोलता है मुझे तो कोई लेना देना नहीं, वो आपका गलती है, बराबर है, बिकॉज हमने तो बराबर शेयर किया था। एंड वो आपसे फिर रिकवर करता है। एंड दैट द रीजन फ्रेंड, आपको ये इंश्योर करना चाहिए, अगर आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है यू शुड ऑलवेज इशू ई इनवॉइस। फिर आपको ई इनवॉइस सबको एप्लीकेबल है क्या? तो आंसर इज नो। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशन विद द गवर्नमेंट हैज गिवन। अगर आप देखोगे एससीजेड यूनिट को, डेवलपर को नहीं, एससीजेड यूनिट को गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दिया है। एडिशनली अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी, जीटीएस सर्विस प्रोवाइडर, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी, मल्टीप्लेक्स अगर आप हो, तो इन सबको एग्जाम्पशन दिया गया है। तो आपको हो गया यार ये स्पेशल लोग है क्या, इनको क्यों एग्जाम्पशन दिया गया? उसका रीजन ये है, अगर आप देखोगे बैंकिंग कंपनी का इनकम क्या होता है? सबसे मेन इंटरेस्ट, जिसके ऊपर जीएसटी है नहीं। अगर आप देखोगे बाकी के जो सेक्टर है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या आपका एडमिशन टू फिल्म देखोगे, मल्टीप्लेक्स, उसमें B2C ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट को लगा वैसे भी उसमें आईटीसी तो कुछ पास ऑन नहीं होने वाला है, एंड दैट द रीजन दे आर गिवन एग्जाम्पशन टू ऑल दिस सेक्टर, बराबर है। तो अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। बैंकिंग कंपनी को एग्जाम्पशन दिया है, तो बहुत बार क्या होता है, बैंक के पास ना बहुत प्रॉपर्टी भी होता है जो वो किसी और को किराए पे देते हैं, रेंटल इनकम कमाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ बैंकिंग बिजनेस के लिए एग्जाम्पशन है क्या? आंसर इज नो। द एग्जाम्पशन इज क्वा एंटिटी यानी द एग्जाम्पशन इज गिवन फॉर द एंटायर बैंकिंग बिजनेस। यानी अगर आप आईसीआईसीआई बैंक हो तो आपको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है ही नहीं, भले आपका रेंटल बिजनेस हो, कोई कंसल्टेंसी बिजनेस हो, किसी में भी आपको ई इनवॉइसेस इशू नहीं करने हैं, बिकॉज द एग्जाम्पशन इज क्वा एंटिटी, इट इज नॉट क्वा द बिजनेस एक्टिविटी। प्लस आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी, जैसे हम कह रहे थे अभी कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ के अबो है तो 1 जनवरी 2021 से ई इनवॉइसिंग वुड बी एप्लीकेबल। अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर था तो 1 अक्टूबर 2020 से तो इट इज ऑलरेडी एप्लीकेबल टू यू। एंड अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो अगले कुछ महीनों में आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे हमने कहा 1 अप्रैल 2021 डेट है, वहां से शायद स्मॉलर एंटिटीज को कवर किया जाएगा। तो जब भी हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सेइंग 100 करोड़ टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड आएगा, वे टर्नओवर में मैं क्या पकड़ूं? यानी कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैं बैलेंस शीट में जो फाइनेंशियल्स में दिखा रहा हूं उस टर्नओवर को कंसीडर करूं, या जीएसटीआर 1 में मैंने जो दिखाया वो कंसीडर करूं, या 3B में जो दिखाया वो कंसीडर करूं। बहुत बार मेरा इंटर स्टेट सप्लाई होता है डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, उसको भी मैं कंसीडर करूं क्या? बहुत बार मैं एग्जम्प्टेड सप्लाई करता हूं, मैं एक्सपोर्ट करता हूं, ये सबको मुझे कंसीडर करना है क्या? सो द आंसर इज यस। प्रैक्टिकली आपका जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर, बराबर है, तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या ऐड होगा? आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आपका एग्जम्प्ट सप्लाई, यानी आप कोई समझो पेन और पेंसिल मैन्युफैक्चर करते हैं, पेंसिल एग्जम्प्टेड है अगर अज्यूम करते हैं तो पेंसिल का टर्नओवर भी आपको ऐड करना है। समझो उसका टर्नओवर 30 करोड़ है। अगर आप पेन मैन्युफैक्चर करते हैं जो टैक्सेबल है, बराबर है, उसका 40 करोड़ है तो 30 + 40 70 करोड़ हो गया। आपने 50 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है शूज का जो टैक्सेबल है, बराबर, यानी कि 0 रेटेड है, तो 50 करोड़ के शूज यानी कितना हो गया आपका कंपनी का टर्नओवर? 30 + 40 + 50 120 करोड़ हो गया, बराबर है। यानी आपने 100 करोड़ का लिमिट क्रॉस कर लिया, तो आपको 120 करोड़ कंसीडर करना है। यानी आप 100 करोड़ के अबो हो, यानी आपको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है। आप कहोगे कौन से साल का टर्नओवर मुझे पकड़ना है? 19-20 का पकड़ू, 18-19 का पकड़ू, 17-18 का पकड़ू? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 17-18 से लेके जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20, ये 3 साल में अगर कोई भी एक ईयर में भी अगर आपका 100 करोड़ के ऊपर अगर टैक्सेबल टर्नओवर हो गया तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। यानी अगर आपका टर्नओवर 17-18 में 70 करोड़ था, 18-19 में 120 करोड़ था, 19-20 में 50 करोड़ है, बराबर है, तो गवर्नमेंट कह रहा है 3 साल में एक बार तो आपका 100 करोड़ के ऊपर चला गया, आप बहुत खुश रहेंगे कि यार मैंने 100 करोड़ क्रॉस कर लिया। बट ई इनवॉइसिंग के लिए इट इज अ
प्रॉब्लम, बिकॉज आपको ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल हो जाएगा. एंड दैट द रीजन फ्रेंड, अगर 3 साल में कभी भी अगर आपका टर्नओवर अगर 100 करोड़ के पीछे ऊपर गया है, यू हैव टू इंश्योर दैट इनवॉइसिंग यू आर कंप्लाइंग विथ इनवॉइसिंग. यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है फाइनेंशियल्स में, आपका जब बैलेंस शीट, फाइनेंशियल P&L का आप टर्नओवर जो लेते हो, उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार जो सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या, अगर आपका गुजरात और महाराष्ट्र में अगर आपके ब्रांचेस है, तो जो ब्रांच टर्नओवर है, जो ब्रांच सप्लाई है, उसको भी आपको ऐड करना है, जो आपके फाइनेंशियल्स में कंसीडर नहीं किए जाते हैं. बिकॉज फाइनेंशियल्स में क्या होता है, विद इन सेम पैन नंबर है, उसको सेल करके कंसीडर नहीं किया जाता है, जो जीएसटी में कंसीडर किया जाता है. तो सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन भी आपको ऐड करने हैं. बहुत बार एज ए कंसल्टेंट हमको लोग कहते हैं यार मेरा टर्नओवर कुछ 99 करोड़ आ रहा है, मैं ई इनवॉइसिंग को कंप्लाई करूं क्या? यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन केस है, अगर यहाँ पर डाउट लग रहा है आपको कि मुझे अप्लीकेबल भी हो सकता है, कभी लग रहा है यार मेरा 101 करोड़ आ रहा है टर्नओवर, अप्लीकेबल यानी कि डाउट आ रहा है, तो इस केसेस में हम कहेंगे अगर इफ यू आर इन डाउट, डोंट थिंक ट्वाइस, डायरेक्टली अप्लाई फॉर ई इनवॉइसिंग. अगर बॉर्डर लाइन केस है, जैसे हम 99 करोड़ का बात कर रहे हैं, बिकॉज क्या होगा, आपके हिसाब से 99 करोड़ है, बट हो सकता है आपका 1.5-2 करोड़ का इनकम है जिसके ऊपर आपने जीएसटी पे नहीं किया है. फॉर एग्जांपल नोटिस पे रिकवरी आपकी तरफ से छूट गया, बराबर है, आपने नोटिस पे रिकवरी पे जीएसटी पे नहीं किया बिकॉज आपको लगा यार पेबल नहीं है. मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके ऊपर, सर्विस टैक्स लॉ के अंदर जीटी एंड इंडिया का, कि नोटिस पे रिकवरी पे है नहीं, यानी आपके हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए आपने कंसीडर नहीं किया. लेकिन बाद में अगर 3 साल बाद पता चलता है कि वो कंसीडर करना था, एंड अगर आपने नॉर्मल इनवॉइसेस इश्यू कर दिए, पूरे 2-3 साल कस्टमर को क्रेडिट नहीं मिलेगा, बराबर है. इसके लिए बहुत ध्यान से ये प्रोविजन को कंप्लाई करिएगा. अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप, गवर्नमेंट ने जो भी जीएसटी पेयर्स है उनके जो जीएसटीआर 1 और 3B के टर्नओवर के बेसिस पे उन्होंने ई इनवॉइसिंग एनेबल कर दिया है बेस्ड ऑन देयर लास्ट 3 इयर्स टर्नओवर. एंड वो एनेबलमेंट के लिए आप ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. आपका जीएसटी नंबर डालिए, आपको पता चल जाएगा ई इनवॉइस आपके लिए एप्लीकेबल हुआ है या नहीं है. जैसे हमने कहा ई इनवॉइसिंग 2 टाइप के कस्टमर को एप्लीकेबल होता है. एक एज अ सप्लायर आपको एप्लीकेबल है, एंड सेकंड एज अ रिसिपिएंट एज अ बायर मुझे क्या इंश्योर करना है कि भैया जो भी मैं जिससे भी परचेस कर रहा हूं, अगर उसने ई इनवॉइस इशू करना था एंड नॉर्मल इनवॉइस दे दिया तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो आप कहोगे यार मुझे क्या पता है कि वो सप्लायर जो उसका टर्नओवर कितना है करके. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनआईसी के वेबसाइट पे एक डेटा ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि भैया ये 32,000 टैक्स पेयर्स है अभी तक जो ई इनवॉइस इशू करते हैं. तो जब भी आप परचेस कर रहे हो, आप चेक कर सकते हो कि ये जो ई इनवॉइसेस वाले सप्लायर है उनसे अगर आप ले रहे हो तो आप चेक कर सकते हो कि आपके पास ई इनवॉइस आ रहा है क्या नहीं. बिकॉज अगर नहीं आया देन आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको. एडिशनली फ्रेंड्स, आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, अगर आप देखोगे लगभग 7% जो टैक्स पेयर है, बिकॉज टोटल टैक्स पेयर्स इंडिया में एक बहुत यूनिक नंबर है, लगभग 1.25 करोड़ लोग जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड है. 1.25 करोड़, और अपना पॉपुलेशन कितना है, लगभग 125 करोड़ अपना पॉपुलेशन है. तो 125 करोड़ पॉपुलेशन और 1.25 करोड़ आर जीएसटी पेयर्स, यानी 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी, यानी हर 100 पीपल के पीछे एक आदमी रजिस्टर्ड है. इतने सारे लोग रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट का डेटा देखोगे, जो 7% टॉप जो टैक्स पेयर है, यानी अबो 5 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वाले, दे लिटरली कंट्रीब्यूट टू 80% से ज्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू जीएसटी का उनसे आता है. एंड दैट द रीजन जो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होने वाला है, जैसे हम कह रहे हैं कि इट विल बी एप्लीकेबल टू अबो 5 करोड़ पीपल. नाउ अभी तक हम ई इनवॉइस का जब नाम ले रहे थे, एवरी टाइम वी आर सेइंग ई इनवॉइस, तो आप कहोगे भैया ई इनवॉइस ये नाम है, बराबर है, तो ई इनवॉइस अगर नाम है तो डेबिट नोट में इशू करूंगा तो चलेगा क्या? वो भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक इशू करनी है क्या? क्रेडिट नोट में इशू करूंगा तो वो भी मुझे इलेक्ट्रॉनिकली इशू करना है क्या? आंसर इज यस. भले इस कंसेप्ट को ई इनवॉइस कहा जा रहा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक डेबिट नोट देनी है 1 जनवरी 2021 से. अगर आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट नोट देनी है 1 जनवरी 2021 से, अगर आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो, बराबर है. तो ये ध्यान रखिएगा, डोंट गो बाय द नेम, बराबर है, बिकॉज ई इनवॉइसिंग है तो ई डेबिट नोट भी देना है और ई क्रेडिट नोट भी देना है. तो लेट अस अंडरस्टैंड ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किसके लिए है.
जैसे हम कह रहे थे कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है तो 1 जनवरी 2021 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। या सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ B2B सप्लाईज, यानी B2C जो है बिजनेस टू कंज्यूमर के सप्लाई जो होते हैं, बिकॉज कंज्यूमर तो क्रेडिट नहीं लेने वाला है, तो उसके केस में एप्लीकेबल नहीं है। बराबर है। बाकी आपका जो डीम्ड सप्लाई है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, सबके केस में ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल कहां पर नहीं है, जैसे हमने कहा बिल ऑफ सप्लाई में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में, B2C में, इंपोर्ट के केस में आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट। और ये जो पूरे स्लाइड्स है, डोंट वरी, आपको पूरे शेयर किए जाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अभी मैं सिंपली आपको बताता हूँ बिजनेस प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से ई इनवॉइसिंग जब 1 जनवरी 2021 को एप्लीकेबल हो जाएगा तो व्हाट वुड बी द चेंज फॉर यू। आप देखेंगे ये लगभग 9 स्टेजेस आते हैं जीएसटी में। आप कस्टमर के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, ई-वे बिल आज जनरेट करते हो, फिर GSTR1 फाइल करते हो, फिर 3B फाइल करते हो, फिर आपको कस्टमर से पैसा मिलता है, फिर आप एनुअल रिटर्न के डेट पे एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, फिर एनुअल ऑडिट करके 99C जो भी रहेगा आपका वो सबमिट करते हो, एंड डिपार्टमेंट आपके पास ऑडिट के लिए आता है तो आप ऑडिट का डेटा सबमिट करते हो। तो आज जीएसटी के लिए लगभग ये 9 स्टेजेस या 9 स्टेप्स आप फॉलो करते हो। अभी अगर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया तो 9 से आपके 12 बज जाने वाले हैं, यानी आपके 3 नए स्टेज ऐड होने वाले हैं। बराबर है। कैसे? आपको एक जेसन फाइल बनाना पड़ेगा, यानी इनवॉइस जैसे बनाया वो इनवॉइस का आपको जेसन यानी एक्सेल फाइल एक बनाना पड़ेगा, जो जेसन इज अ लाइटर फॉर्मेट ऑफ एक्सेल शीट। तो वो जेसन फॉर्मेट आपको फाइल बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट एक ई इनवॉइस यानी जेसन फाइल देगा, एंड वो जेसन फाइल या ई इनवॉइस का आपको प्रिंट लेना पड़ेगा, एंड वो ई इनवॉइस आपको कस्टमर को देना पड़ेगा। बराबर है। ये प्रिंट यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिकल प्रिंट, आप ई कॉपी भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट के पोर्टल से जब आपको ई इनवॉइस मिलेगा, जो जेसन फाइल मिलेगा, उसमें क्यूआर कोड जो आपको आपके इनवॉइस पे मेंशन करना है, क्यूआर कोड, वो क्यूआर कोड आपको पिक्चर में मेंशन करना है। लेकिन गवर्नमेंट के पोर्टल से जब आपको मिलेगा वो क्यूआर कोड, दैट यू विल रिसीव इन नंबर्स, एंड दैट द रीजन। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो वैशाली भी आपको इसके साथ डिस्कस करेगी। जैसे हमने कहा ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। आप जेसन फाइल अपलोड कर रहे हो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास से जेसन फाइल डाउनलोड कर रहे हो, एंड वो जेसन फाइल जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसमें IRN नंबर आपको मिला है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड क्यूआर कोड, वो आपको कस्टमर को देना है। बराबर है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस नए जो ऐड होने वाले हैं। अभी आप कहोगे कि ई-वे बिल के टाइम पे, जब ई-वे बिल जो है वो कौन कौन इश्यू कर सकता है? सप्लायर इश्यू कर सकता है, रिसिपिएंट कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। तो ई इनवॉइस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं किसी और को बोलता हूँ ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए, तो ये प्रैक्टिकली ऑप्शन आपके पास है नहीं। आपको ही एज ए सप्लायर ई इनवॉइस इशू करना है। सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर में उन्होंने बोला है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कर सकता है, बाकी सब केसेस में कंपल्सरीली सप्लायर को ही ई इनवॉइस जनरेट करना है और कोई भी नहीं कर सकता। अभी यहां पर कुछ स्टेप प्लान वगैरह जो है ये मैं आपको सर स्लाइड के साथ शेयर करूंगा सेपरेटली। इसके बारे में ज्यादा जो डिटेल्स है, पॉइंट जो है, वो मेरी जो कलीग है वैशाली विल डिस्कस द सेम। So I think we are now short of time. So I will request Vaishali to take over the session and discuss with the participant the practical challenges when you generate IRN and QR code and obviously e-invoices also. And at the end of the session, again I will join you for Q&A. Okay, thank you, Pritam sir. This was a very good and extensive presentation. So I'll just share my screen now. So I'll because shortage of time, so I'll quickly cover what I actually want to cover. Just give me a moment. So my screen is visible, right? Yes. Okay. So so if you see. This is the actual the schema. So जो notification बोला है, notification 60, जिसमें actual data points है कि ये data आपको भेजना है. So before going into what practical challenges we are facing, this is very important for you to know कि क्या actual data fields आपको भेजने हैं. जैसे document details हो गया, number, date, type वगैरह. फिर supply type जैसे प्रीतम सर ने बोला कि B2B है या SEZ है, deemed export है,
क्या टाइप ऑफ काउंटर पार्टी है उसके बेसिस पे। फिर बायर सप्लाई का एड्रेस होता है, डिस्पैच और शिप टू डिटेल्स अगर आपका डिफरेंट है, जैसे बिकॉज ये ई वे बिल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका डिस्पैच या शिप टू बायर सेलर से डिफरेंट है तो आपको ये डेटा भेजना पड़ता है। फिर आइटम डिटेल्स हो गया, जैसे कि आप क्या गुड्स सेल कर रहे हो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसका HSN क्या है, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट क्या है, एंड टैक्सेबल वैल्यू एट दैट लेवल क्या है, इनवॉइस लेवल का डिटेल्स लाइक टैक्सेबल वैल्यू, डिस्काउंट, अदर चार्जेस, वो सब भी है। उसके साथ साथ ये नेक्स्ट के जो फील्ड्स है ये सारे ऑप्शनल फील्ड्स है, सो ये कंपलसरी नहीं है, बट आप आपको भेजना है तो भेज सकते हो। ये लोग ने क्या किया है, दे हैव टेकन यूरोपियन स्टैंडर्ड एज बेस एंड दे हैव क्रिएटेड दिस स्कीमा। सो पेमेंट डिटेल्स, इनवॉइस रेफरेंस, एक्सपोर्ट भी अगर शिपिंग बिल यूजुअली होता नहीं है जब इनवॉइस बनता है तब बाद में आता है तो वो कंपलसरी नहीं है। फिर ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, ऑफकोर्स अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो ही रहेगा, सर्विसेज में नहीं रहेगा, एंड अदर डिटेल्स। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टोटल 28 मैंडेटरी फील्ड्स है, 18 कंडीशनल मैंडेटरी। अभी कंडीशनल का मतलब क्या हुआ कि जैसे गुड्स है तो क्वांटिटी मैंडेटरी है, सर्विसेज में नहीं है। वैसे ही लाइक बिल टू शिप टू है तो आपको शिप टू डिटेल्स डालने हैं, तो वैसे टाइप ऑफ कंडीशनल मैंडेटरी फील्ड्स है। सो ये ना एक IRN जनरेट करते वक्त ये डेटा पॉइंट्स है जो आपको सेंड करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है कि आपके सिस्टम में ये डेटा पॉइंट्स है कि नहीं वो आपको इंश्योर करना है। सो आपके जो भी क्लाइंट्स रहेंगे, वो जो भी ERP यूज कर रहे हैं, उनको इंश्योर करना है कि ये डेटा पॉइंट्स उनके सिस्टम में होने चाहिए, तभी जाके वो लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये डेटा पॉइंट्स। अभी नेक्स्ट स्लाइड जो इन्हें डर ही नहीं जाता बता, आई नो बहुत आपको लग रहा होगा व्हाट इज दिस, ये क्या है। सो तो ये जेसन रिक्वेस्ट जो यूजुअली आप इवन જ્યારે હમણાં તમારું જે GSTR1 ફાઇલિંગ છે એમાં પણ if you use the Excel offline utility that government has provided, तो उसमें भी हम लोग Excel में डेटा डालते हैं और वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि कन्वर्ट टू जेसन, एंड वो फिर बाद में पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे भी सेम अप्रोच है, ई-वे बिल में भी सेम था और यहाँ पे भी सेम है। सो आपको एक्सेल यूटिलिटी अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको ये सारा डेटा एक्सेल में डालना है, वहां से जेसन कन्वर्ट करना है, तो जेसन कुछ ऐसा दिखता है एंड उसको जाके आपको अपलोड करना है। तो अभी ये जेसन जो है इसमें ये सारे डेटा पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए, तो इसमें जो भी फील्ड्स है वो आपको भेजने हैं। वो भेजने के बाद जो रेस्पॉन्स आएगा वो ऐसा आएगा। सो आप देख सकते हो कि एक्नॉलेजमेंट नंबर तो ठीक है, रीडेबल फॉर्मेट है, डेट भी रीडेबल है। IRN नंबर अगर देखोगे तो ये 64 डिजिट का हैश है। सो इसमें क्या होता है, अपना डॉक्यूमेंट नंबर, फिर डॉक्यूमेंट टाइप मतलब इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, एंड GSTN ऑफ द सप्लायर मतलब आपका खुद का GSTN, एंड फोर्थ इज द फाइनेंशियल ईयर। सो ये डॉक्यूमेंट कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, बिकॉज आपको एक फाइनेंशियल ईयर में एक इनवॉइस नंबर सिर्फ एक ही बार आप रेज कर सकते हो। सो ये 4 फील्ड्स को बेस लेके ये नंबर बनाया गया है एक एल्गोरिदम यूज करके। उसके बाद ये साइंड इनवॉइस, अभी साइंड इनवॉइस जो पैरामीटर है उसमें जो डेटा आ रहा है ये कुछ नहीं होता, ये पूरा आपका जो आपने जो भेजा है वही डेटा वापस रिपीट आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक सिग्नेचर अटैच्ड है गवर्नमेंट का। सिमिलरली एक साइंड QR कोड है, इसमें क्या होता है कि कुछ ही पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि GSTN ऑफ रेसिपिएंट, सप्लायर, HSN, ये सब फील्ड्स इसमें रहती है, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में। फिर स्टेटस मतलब एक्टिव है IRN या कैंसल्ड है, ई-वे बिल नंबर। सो यूजुअली जनरेट करते हैं तो स्टेटस हमेशा एक्टिव ही आता है, बट ये फील्ड अगर आप IRN नंबर से डेटा जब गेट करते हो तो उसमें ये एक्टिव का कैंसिल भी हो सकता है। एंड ई-वे बिल नंबर, ई-वे बिल डेट और वैलिड टिल। सो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स डाले होंगे तो ई-वे बिल भी इसी के साथ बन जाएगा आपका। सो अभी ये QR कोड जो है, सो अगर आप देखोगे तो ये मेरा एक्चुअल टेक्स्ट है जो वहां से आएगा, वो आप इमेज में जब कन्वर्ट करोगे तो ये इमेज दिखेगा। नाउ अभी आप इसको कोई भी नॉर्मल प्ले स्टोर का कोई भी बारकोड QR स्कैनर यूज करोगे एंड स्कैन करोगे तो आपको यही टेक्स्ट मिलेगा फिर से, ठीक है। बट इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आपको या तो गवर्नमेंट का आप वेरीफाई QR का एक ऐप है वो यूज कर सकते हो, या फिर आप Iris Peridot हमारा ऐप है जिसमें हम लोग ये फीचर ऐड किए हैं। सो 1-2 दिन में दैट विल गेट रिलीज, सो यू कैन स्कैन यूजिंग दैट। सो एसेंशियल ये है कि आप वो यूज करो या हमारा ऐप यूज करो, दोनों चीजों में यू विल गेट दिस डिटेल्स। सो इफ यू कैन सी सप्लायर GSTN, रेसिपिएंट GSTN, डॉक्यूमेंट टाइप, नंबर, डेट, वैल्यू,
लाइन आइटम्स कितने हैं, मेन HSN क्या है, IRN नंबर और IRN डेट। और इम्पोर्टेंट सबसे ये है कि ये एक सिग्नेचर है, तो ये बताता है कि वेदर दिस इज एक्चुअली अ करेक्ट रजिस्टर्ड इनवॉइस और नॉट। सो ये एज अ सेलर आपको नहीं करने का है, लेकिन ये एज अ रेसिपिएंट वेन एवर यू गेट एन इनवॉइस। सो एज एज प्रीतम सर सेड कि जैसे 100 to 500 करोड़ के लिए इवन दो अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एप्लीकेबल है एज अ रेसिपिएंट, बिकॉज आपको जब भी अभी इनवॉइस आता है, सो इफ योर वेंडर बिलोंग्स टू 500 करोड़ कैटेगरी, तो आपको ये स्कैन करके देखना जरूरी है, वरना आपका ITC अफेक्ट हो सकता है। तो ये एसेंशियल है कि जो भी आपका सिस्टम में डेटा एंट्री कर रहा है उसको आपको ये ऐप यूज करना कंपलसरी। सो ये एक बिजनेस प्रोसेस में ही आपको डालना पड़ेगा कि बिफोर एंटरिंग द परचेस इनवॉइस इनटू योर सिस्टम्स, you ensure that your this is scanned properly. और also challenges जो आते हैं typically आपको कि मतलब सप्लायर ने आपको जो इनवॉइस दिया है उस पे डॉक्यूमेंट नंबर कुछ और लिखा हुआ है, और एक्चुअली में GSTR 1 जब फाइल कर रहा है तो कुछ और ही डॉक्यूमेंट नंबर आया है, तो उसमें आपको रिकंसिलिएशंस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे कभी क्लैरिटी है, बिकॉज यही डेटा आगे जाके GSTR 1 में भी ऑटो पॉपुलेट होने वाला है। So आपका ये डॉक्यूमेंट नंबर विल बी द फाइनल डॉक्यूमेंट नंबर इफ यू इफ यू आस्क मी। सो आपको जब भी अभी एंट्री करते हो तो बेटर यही रहेगा कि यहाँ का डॉक्यूमेंट नंबर रेफर करके यू कैन put it, and even the GSTN number. So ऐसा भी होता है कई बार आपको महाराष्ट्र में सपोज आपके 2 GSTN है या गुजरात में 2 स्टेट्स 2 GSTN नंबर्स है आपके पास, आप किसी एक में एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उसने किसी दूसरे में डाला, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि प्रिंट में जो डालेगा वो आपका खुद का रहेगा, लेकिन इसमें अलग रह सकता है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। सो रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू चेक दिस। नाउ अभी इफ यू आस्क मी, अभी IRN जनरेट हो गया, ई-वे बिल भी साथ में जनरेट हो गया, तो कैंसलेशन भी एक फ्लो है जो उन्होंने ऐड किया है, जैसे कि इसमें लेकिन 24 आवर्स का ही फंडा है। सो इफ यू वांट टू कैंसल एन IRN यू हैव टू कैंसल इट विद इन 24 आवर्स। और अभी इसमें भी जैसे अगर ई-वे बिल जनरेट हो चुका है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, पहले आपको ई-वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको IRN को कैंसिल कर सकते हो। सो आपको ये अभी ध्यान रखना है कि 24 आवर्स ही है। एक और चैलेंज इसमें ये है, ई-वे बिल का आपको पता है कि अगर मैं कैंसिल करके दोबारा सेम इनवॉइस से ई-वे बिल बनाती हूँ तो वो अलाउ करता है, लेकिन IRN में ऐसा है ही नहीं। सो IRN में एक बार जो इनवॉइस आ गई उसको कैंसिल भी किया तो आपको फ्रेश इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विथ अ न्यू नंबर, आप सेम इनवॉइस नंबर नहीं भेज सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और पॉइंट है जैसे कि डॉक्यूमेंट नंबर जो होता है वो आपका प्रीफिक्स 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो ये सबसे पहला स्टेप आपको अभी जाके सबको चेक करो, सब क्लाइंट्स को, कि ये प्रीफिक्स 0 अगर है तो वो अलाउड नहीं है। सो आपको एक नंबर या अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपका इनवॉइस नंबर। सो दैट इज वन थिंग। अभी जैसे मैंने बोला ई-वे बिल अभी 1 अक्टूबर से 500 करोड़ अबव के लिए एप्लीकेबल हो गया, 1 जनवरी से अभी 100 करोड़ के अबव एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक और बीच में स्टेप उन्होंने अभी अनाउंस किया है, वो है वो लोग ई-वे बिल अलाउ नहीं करेंगे आपको ई-वे बिल पोर्टल से जनरेट करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी फॉर एग्जांपल एनी 500 करोड़ कंपनी जो अभी IRN जनरेट कर रही है, उनको ई-वे बिल भी वो डॉक्यूमेंट के लिए IRN पोर्टल से ही करना पड़ेगा बाय गिविंग द IRN नंबर एंड दी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। सो इसमें ये जो फ्लो है इसमें क्या है, या तो आप इनवॉइस डिटेल्स अगर भेजते हो सिर्फ तो ई-वे बिल के बिना आता है, बट आफ्टर IRN जनरेशन भी आप उसका ई-वे बिल कर सकते हो यही पोर्टल से, इनवॉइसिंग पोर्टल से। तो उस केस में आपको IRN भेजना है और ट्रांसपोर्ट ID भेजोगे तो पार्ट ए आएगा, ट्रांसपोर्ट और व्हीकल भेजोगे तो पार्ट बी आएगा। तो ये पूरा ई-वे बिल का जो फ्लो है वो उन्होंने इधर भी लेकर लाया है। एंड जो भी इनवॉइसेस, सो 1 जनवरी से इट इज नॉट जस्ट ई इनवॉइसिंग स्टार्टिंग but also blocking e-way bill will start for 1st Jan from 1st Jan. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी 1st Jan से IRN करोगे तो आपको वो इनवॉइसेस पे ई-वे बिल भी यहीं से करना पड़ेगा। तो आपको दोनों चीजें यहाँ से करनी है। सो आपका नॉट जस्ट ये स्टॉप होगा, ई-वे बिल मूवमेंट का भी इम्पैक्ट होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है अभी कि ब्लॉकिंग सभी के लिए 1st Jan से एप्लीकेबल हो जाएगा।
सो अभी 500 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनीज तो ऑलरेडी ये प्रोसेस कर रही है, लेकिन 100 करोड़ एंड अबव को कम्युनिकेशन एज सच गया है कि नहीं वी डोंट नो, बट ऑन द साइट इफ यू सी ई-वेबल पोर्टल पे अगर आप जाते हो वहां पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि 31 दिसंबर के बाद आपको ई-वेबल भी IRN पोर्टल से ही बनाना है, ठीक है। तो ये क्लियर है। आप यहाँ पे ये क्यों किया है उन्होंने, बिकॉज अभी क्या हो रहा है करंटली आप IRN पोर्टल से बनाओगे, एक बार इनवॉइस डिटेल्स यहाँ भेजा, फिर से ई-वेबल सिस्टम पे आप सेम इनवॉइस डिटेल्स भेज रहे हो, उसमें हो सकता है डेटा कुछ और भेज रहे हो, सो दे डोंट वांट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, क्योंकि वो लोग कितना ट्रैक करेंगे। सो दे वांट डेटा एक ही बार आ जाए आपका ई इनवॉइसिंग में, उससे ई-वेबल भी हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप है अपना GSTR1 ऑल्सो, तो वो लोग GSTR1 भी ऑटो पॉपुलेट करने वाले हैं। सो ये अगर आप अभी भी GSTN पोर्टल पे जाओगे वहां पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आ चुका है, तो अभी तक ऑटो पॉपुलेशन स्टार्ट किया नहीं है, बट दिसंबर मंथ का वो लोग करने वाले हैं। सो अज्यूम दैट 100 to 500 के लिए तो जनवरी से स्टार्ट हो ही जाएगा। सो इसमें कैसे है कि आपके ये सारे सेक्शंस आपके हो जाएंगे मतलब ई इनवॉइस से ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। सो अभी इधर भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज नॉट जस्ट आपका ई इनवॉइसिंग, बट आपको ई-वेबल में भी इंश्योर करना है सेम डेटा से आपका ई-वेबल बनेगा। GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट होने के बाद आपको चेक करना है कि करेक्ट डेटा है कि नहीं है। सो ये सब लिंक कर दिया है अभी उन्होंने, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। और ऑटो पॉपुलेशन में भी उन्होंने बोला है कि जो आपका अक्टूबर डेटेड इनवॉइस होगा वो अक्टूबर मंथ में ही जाएगा। तो अगर अक्टूबर मंथ सपोज फाइल कर दिया आपने, तो उस केस में कैसे होगा, तो उस केस में वो लोग ने बोला है कि ऑटो पॉपुलेट नहीं करेंगे, तो आपको वो नवंबर मंथ में डालनी पड़ेंगी इनवॉइसेस। तो अकॉर्डिंगली फिर वो लोग जो भी डिफरेंसेस होंगे वो लोग ये चीजें टैक्स ऑफिसर्स को वापस MIS के तरीके से वो लोग रिपोर्ट करेंगे, नोटिसेस आ सकती है, आपको एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ सकती है। सो अभी 1 का ऑटो पॉपुलेशन जो होगा वो आपको एक्चुअल GSTR1 जो आपको फाइल करना है उससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और कुछ डिस्क्रिपेंसीज है या जो भी है आपको पहले से ही मतलब फाइल करते वक्त ही या तो एक कम्युनिकेशन डाल के रखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि भाई हमारा कुछ टेक्निकल रीजन से हो गया, या वॉट एवर इज द रीजन, बिकॉज इनिशियली क्या हुआ है ना कि बहुत सारे डेटा एक्सट्रैक्ट करते वक्त इश्यूज आ सकते हैं, आप रॉन्ग डेटा भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अभी ये तो हो गया जो एक्चुअल फ्लो है, अभी एक्चुअल एक्सपीरियंस पे आते हैं जो हम लोग ने काइंड ऑफ नोटिस की है जब हम 500 करोड़ एंड अबव के लिए करते हैं। तो जैसे प्रीतम सर ने दिखाया कि एनेबल करना है आपको, तो 100 करोड़ अबव वाली जो कंपनीज है उन लोग के लिए 15 दिसंबर से ऑटोमेटिक एनेबलमेंट हो जाएगा, क्योंकि 15 दिसंबर से आपका प्रोडक्शन पे ट्रायल रन स्टार्ट हो जाए। प्रोडक्शन मतलब लाइव सर्वर पे आपका ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 15 दिसंबर से ही IRN जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो आपके एक्चुअल इनवॉइसेस पे, इवन इफ यू आर 100 करोड़ एंड अबव। बट वो सारा रियल होगा, वो सारा डेटा जो है वो लोग उसको क्या बोलते हैं डिलीट नहीं करेंगे अपने सिस्टम से। सो आपको इंश्योर करना है कि आप सही से ही बना रहे हो, इवन इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल, आप टेस्टिंग भी कर रहे हो तो लाइव डेटा के साथ ही करो, दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। एंड अगर आपके कुछ GSTNs नहीं एनेबल्ड है तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर क्योंकि ये केसेस हुए थे कि इवन दो आई एम 500 करोड़ अबव एट अ पैन लेवल, बट कुछ इनवॉइस कुछ GSTNs थे मेरे जो नहीं एनेबल किए गए थे, तो आई हैड टू अर्लियर सेंड अ मेल। अभी उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, तो अभी आपको मेल नहीं भेजना, आप ऑनलाइन ही जाके अपने आप को एनेबल कर सकते हो फॉर ई इनवॉइसिंग। अभी ये आता है सेकेंड स्टेप वेर यू इफ यू आर गोइंग वाया ASP GSP और ये, तो उसमें भी क्या होता है कि आपका ई-वेबल पोर्टल भी आप देखोगे तो 2 काइंड ऑफ यूजर्स होते हैं, एक मेन लॉगिन यूजर होता है और एक सब यूजर भी असाइन कर सकते हो। तो आप जब भी यहाँ पे GSP सिलेक्शन का फ्लो प्रोसेस करने वाले हो तो तभी भी आपको ध्यान रखना है कि मेन यूजर लॉगिन से करो, वरना आपको ये API का ड्रॉप डाउन ही नहीं दिखेगा। सो ये एक चीज इम्पॉर्टेंट है। अगेन ये भी सिलेक्ट करते हो एक बार तो वो क्रेडेंशियल्स भी आपको स्टोर करने पड़ेंगे, अगर अपडेट करते हो तो वो करना पड़ेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अभी वो जो QR कोड आएगा वो आपको इनवॉइस पे प्रिंट करना है। तो एसेंशियल ये है कि आपको
केवल IRN और QR वहां जनरेट करके गवर्नमेंट पोर्टल पे रख नहीं देना, वो आपको आपकी सिस्टम में भी लाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट पोर्टल से भी प्रिंट निकलेगा बट उस पर आपका लोगो नहीं रहेगा, उस पर आपका अदर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रहेगा। तो आपको अगर अपने ही प्रिंट में चाहिए तो वो आपको QR जो है वो कंपलसरी प्रिंट करना है, सो आपको वो अपने सिस्टम्स में भी डालना पड़ेगा, तो ताकि वो इमेज आप बन के वो आए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कन्वर्ट करना है इमेज में और प्रिंट करना है, तो ये इसमें भी डिफिकल्टीज आती है काफी लोगों को, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा ये है कि आपको बहुत सारे वैलिडेशंस डाले हैं, तो अगर आप देखोगे तो HSN का एक पूरा लिस्ट है उनके वहां पे, तो वो मास्टर कोड्स है पूरे जो तो आपको अपने मास्टर्स अपडेट करने चाहिए। तो आप जो भी अभी ERP यूज कर रहे हो, आपके ऑलरेडी कुछ मास्टर्स होंगे, तो यू हैव टू इंश्योर दैट द HSN इज देयर इन योर मास्टर कोड लिस्ट। प्लस अभी तो 4, 6 एंड 8 ही अलाउड है, सो यू कैन नॉट पुट 5 डिजिट HSN, 2 डिजिट भी नहीं अलाउड है, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट। तो आपको वो इंश्योर करना है कि ये सब आपका करेक्ट जा रहा है। फिर दूसरा होता है टैक्स रेट होता है, तो वो तो एनीवेज मोस्टली लोगों का लिस्ट ही रहता है, वहीं से पिक करते हैं। काउंटर पार्टी GST एंड, तो अगर आपका जिस काउंटर पार्टी से आप डील कर रहे हो अगर वो कैंसल्ड है तो भी ई इनवॉइस आपको जनरेट करने नहीं मिलेगा। तो अगेन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वो वैलिड है कि नहीं है। तो आप अगेन ये IRISPerry.free ऐप है, आप उस पर भी कर सकते हो। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका काउंटर पार्टी GSTN जो है वो आपके सिस्टम्स में भी आप बार बार वो एक चेक रखो ही, बिकॉज कैंसलेशन आजकल सस्पेंशंस होते हैं, कैंसलेशंस होते हैं, सुओ मोटो कैंसलेशन भी होते हैं, और कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कैंसिल कर देते हैं, आपको पता नहीं रहता। लेकिन ये चीजें सब अपडेट हो जाती है, तो आपको ये एक क्या बोलते हैं वो एक क्वार्टरली या मंथली एक बार एक रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है ये चीज का। नेक्स्ट पिन कोड है कि पिन कोड के भी मास्टर्स है उनके जो वैसा ही होना चाहिए जो जैसे मास्टर्स में है। डिस्टेंस कैलकुलेशन है, तो डिस्टेंस के लिए भी उन्होंने वैलिडेशन डाला है, जैसे कि अगर आप मुंबई से लेके गुजरात का डिस्टेंस जो डालते हो तो वो डिस्टेंस आपका या तो +10% -10% का डिफरेंस चलेगा, उससे ज्यादा का नहीं चलेगा। तो अभी ई-वे बिल पोर्टल पे भी ये एप्लीकेबल हो गया है। पहले ई-वे बिल पे +10% और माइनस में कितना भी चलता था, बट अभी अलाउड नहीं है। एडिशनली अभी 0 डाल सकते हो आप, मतलब 0 मतलब क्या होगा कि NIC के पास जो ऑटो कैलकुलेटेड डिस्टेंस है ना, वो वही वाला डिस्टेंस वो ले लेगा आपका डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए। ऑफ कोर्स ये सिर्फ ई-वे बिल के लिए एप्लीकेबल है, तो ये चीज आप कर सकते हो अपने जो भी आप जब भी आप ई-वे बिल के साथ करने वाले हो, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हो। इसके ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज है, दो लॉ में कहीं वैलिडेशंस एज सच नहीं है कि मेरा टैक्स अमाउंट लाइन आइटम लेवल पे शुड बी इक्वल टू टैक्सेबल इनटू रेट, बट ये वैलिडेशन सभी डाले गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेक है जो आपको अभी से देखने पड़ेंगे। सो जैसे मैंने ऊपर सारे फील्ड्स बताए, तो देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज आइटम लेवल पे अमाउंट के फील्ड्स है और इनवॉइस लेवल पे अमाउंट के फील्ड्स है। सो आइटम लेवल पे आप देखोगे तो देयर इज अ टैक्सेबल वैल्यू, there is a gross amount, so gross amount usually आपका quantity into unit price होता है, तो taxable value should be equal to your gross amount minus discount। so आप item level पे अगर कोई discount दे रहे हो तो आप उसको minus करके ही आपका value होना चाहिए taxable का। then tax value should be equal to value into rate, तो ये head wise है, मतलब CGST है तो accordingly वो half हो जाएगा CGST और SGST में। टोटल वैल्यू ऑफ आइटम, तो एक आइटम लेवल पे भी एक काइंड ऑफ इनवॉइस वैल्यू बोल सकते हो इसको, जो हर आइटम के लिए एक समेशन किया हुआ है। सो टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स वैल्यू प्लस अदर चार्जेस। सो इन्होंने क्या किया है, ये अदर चार्जेस लाइक यूजुअली ऐसा होता है ना कि आपके कुछ अदर चार्जेस है जो टैक्सेबल नहीं है, तो ये उन्होंने इसीलिए डायरेक्टली आइटम लेवल के टोटल में इंक्लूड किया हुआ है। तो ये वैलिडेशंस है, एंड सिमिलरली इनवॉइस लेवल पे भी ये वैलिडेशंस है। लाइक अभी जब अगर आपके मल्टीपल लाइन आइटम्स है, तो जैसे आपके 5 लाइन आइटम्स है, तो पांचों का सम मिला के आपका टैक्सेबल वैल्यू होना चाहिए। टैक्स वैल्यू भी सेम, एंड इनवॉइस वैल्यू में जो टोटल वैल्यू ऑफ आइटम ऊपर कैलकुलेट किया
माइनस इनवॉइस लेवल पे एक डिस्काउंट फील्ड है और प्लस इनवॉइस लेवल पे एक अदर चार्ज है प्लस राउंड ऑफ। अभी यहाँ पे भी टेक केयर करना है कि यहाँ पे जो डिस्काउंट है ये आइटम लेवल का डिस्काउंट जो है ये अलग फील्ड है और ये इनवॉइस लेवल पे डिस्काउंट है ये अलग वैल्यू है। सो दिस इज नॉट समेशन ऑफ ऊपर का वैल्यूज। सिमिलरली अदर चार्जेस भी जो आइटम लेवल पे है ये डिफरेंट फील्ड है और ये डिफरेंट फील्ड है। तो जो आपके केस में एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, बट यहाँ पे ये इंश्योर करना है कि आपका वैल्यूज सब मैच कर रहा है। और ये राउंड ऑफ का एक फील्ड दिया है, यूजुअली होता है ना आप इनवॉइस में मतलब 10 रुपीज का आप राउंड ऑफ कर देते हो या 100 का कर देते हो ऐसे। तो इसमें उन्होंने एक लिमिट रखा है कि प्लस 99.99 या माइनस 99.99। सो मान लो आपका 105 आ रहा है और आपको 100 रखना है तो वो आप 5 को राउंड ऑफ वैल्यू में डाल सकते हो। अभी ये सब जो मैं कैलकुलेशंस बोल रही हूँ उसमें उन्होंने थोड़ा टॉलरेंस अलाउ किया है, बट वो थोड़ा मतलब बहुत ही थोड़ा है, 1 रुपी का ही है। सो इफ दे हैव गिवन दिस क्लियर एग्जांपल्स ऑन द पोर्टल इटसेल्फ, तो आप लोग उधर पोर्टल पे भी जाके देखोगे तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सो 2345.01 से लेके अगर 2345.99 तक का कोई भी वैल्यू रहेगा तो इसका राउंड ऑफ में वो लोग ने -1 और +2 अलाउ किया है। और अगर ऑलरेडी राउंडेड ऑफ आ रहा है तो इट विल बी अगर इवन इफ मेरा राउंडेड ऑफ मतलब 2345 आ रहा है तो भी उन्होंने 2344 से लेके 2346 ये अलाउ किया है। सो ये बहुत डिटेल्ड स्लाइड है आई नो, बट ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी बिकॉज यहीं से आपका सब शुरुआत होगा और यहीं पे बहुत सारे एरर्स भी ले हम लोग को। इवन इफ 500 करोड़ अबव वाले लोगों ने जल्दी स्टार्ट किया था टेस्टिंग, लेकिन फिर भी जब एक्चुअल डेटा आया तो क्या होता है कि बिकॉज आपका B2B में कुछ अलग तरीके के चार्जेस होते हैं, एक्सपोर्ट में कुछ अलग तरीका का होता है, तो ये सब हर एक सिनारियो के लिए आपको ये सारी चीजें टेस्ट करनी है। और एक और चीज है इसमें हमने जो टिपिकली इश्यूज फेस किए हैं कि जब भी डेटा आप क्योंकि देखो ये सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफर है, तो अगर आप डायरेक्ट अगर डायरेक्ट कोई सॉफ्टवेयर से कर रहे हो या जो भी आपका अगर कोई डायरेक्ट API से आप चूज कर रहे हो तो क्या हो जाता है कि आपने एक बार API का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया कि यहाँ से डेटा ऐसे एक्सट्रैक्ट होगा और वहां पे पुश होगा, तो एक बार आपको इंश्योर फिर भी गवर्नमेंट पोर्टल पे करना है कि आपने जो डेटा बोला था मैपिंग ठीक से हुई है या नहीं, आपका डेटा पॉइंट्स ठीक से गया है या नहीं। तो इवन इफ ऑफलाइन यूटिलिटी हो तो ऑफलाइन यूटिलिटी में भी जब आप डेटा डाल के आप जेसन बना के वहां पे पुश करोगे तो एक बार आप पोर्टल पे जाके सारे वैल्यूज या जो प्रिंट निकलता है वहां पे वो प्रिंट और अपना प्रिंट कंपेयर कर लेना। बिकॉज ये एक्सपोर्ट के केस में बहुत केसेस हमने देखे जहाँ पे बिकॉज वो लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत इश्यूज मिले हैं कि भेजते वक्त कुछ और ही भेज दिया लेकिन एक्चुअल इनवॉइस में कुछ और प्रिंट है। ऑल दीज थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल वाइल रिफंड्स एक्सेट्रा। तो आपको बहुत इंश्योर करना है नॉट जस्ट फॉर योर B2B क्लाइंट्स की उनका क्रेडिट सही हो, बट इवन योर एक्सपोर्ट योर ओन रिफंड्स यू हैव टू इंश्योर। सो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है IRN जनरेट करते वक्त। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिनेरियोज है, सो आई थॉट आई जस्ट कवर। सो उन्होंने ना वर्क अराउंड्स दिए है बिकॉज अभी जैसे TCS आ गया जो नया इनकम टैक्स में जो TCS प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है, दो वहां पे अभी भी कंफ्यूजन है कि एक्चुअली तो पेमेंट बेसिस पे है तो इनवॉइस पे आइडियली नहीं होना चाहिए, बट फिर भी काफी लोग TCS को इनवॉइस लेवल पे जा रहे हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वो न्यू प्रोविजन या TCS स्क्रैप सेल वाला हो या जो भी हो, अगर आपके इनवॉइस में आप TCS दिखा रहे हो और उसको इंक्लूड कर रहे हो इनवॉइस वैल्यू में, तो आप क्या कर सकते हो उसको बिकॉज TCS के लिए कोई फील्ड नहीं है अभी स्कीमा में, तो आप उसको अलग से रिपोर्ट नहीं कर सकते अभी गवर्नमेंट को। तो उन्होंने खुद ही वर्क अराउंड बोला है कि आप उसको अदर चार्जेस में डाल दो एंड एक रिमार्क का फील्ड है जहां पे आप ये मेंशन कर दो कि ये TCS हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो ऐसे करके आप उसको फिलहाल दिखा सकते हो। वैसे एक रियल एस्टेट सेक्टर में एक इशू है जैसे कि इसमें यूजुअली होता है कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में 2/3 ऑफ द वैल्यू इज ओनली टैक्सेबल, तो यूजुअली 1/3 अपना रिबेट है। सो इसमें भी यही प्रॉब्लम होता है कि while reporting taxable value you are reporting 2/3 value, tax amount is also calculated on 2/3 value. However, when you report the invoice value, it is inclusive of this 1/3 also. But अगर आप ऊपर वाले validations देखोगे आप मतलब तो उसमें वहां पे आपने देखा होगा कि ये
फिट नहीं होगा वैलिडेशन में, एरर आएगी अगर आप ऐसा करोगे तो इसके लिए इसमें भी बोला है कि आप उसको अदर चार्जेस में डाल दो एंड उसको रिपोर्ट कर दो एज रिमार्क्स। ओके, अभी यहाँ पे सिमिलरली ऑटो सेक्टर में क्या होता है कि एक दूसरा कंसेप्ट है विच इज लाइक अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। अभी उसमें क्या होता है कि टैक्सेबल वैल्यू में वो इंक्लूड होता है बट इनवॉइस वैल्यू में एक्सक्लूड होता है, क्योंकि उस पे टैक्स लगता है बट सिर्फ टैक्स अमाउंट इनवॉइस वैल्यू पे इंक्लूड होता है। So here again, they have said instead of other charge, there is discount field where you can report this thing. So ये भी उन्होंने ऐसा एक work around दिया and all these things we as a ASP GSP हम लोग को जब client से ये सारे issues आए, we kind of reported to them through self service portal या फिर हमारा mail IDs थे पहले, तो email ID पे हम लोग mail करते थे, तो वहां से हम लोग को फिर वर्क अराउंड रिवर्ट आते थे। तो ये कहीं आपको FAQs में नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें उन्होंने TCS का पॉइंट इंक्लूड किया है, बट ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिनेरियोज जो भी आप फेस करोगे ना, सो हमेशा राइट इट अप टू देम, मतलब सेल्फ सर्विस पोर्टल पे आप उसको ये आपका सिनेरियो डाल दो, उसके साथ आपका इनवॉइस कॉपी भी अटैच कर दो, दे विल गिव यू अ वर्क अराउंड करंटली, बिकॉज अभी का जो स्कीमा बना है वो जेनेरिक बना है, तो वहां पे लाइक स्पेसिफिक सिनेरियोज कवर नहीं किए गए। माइनिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा एक केस है जहां पे लाइक अनलोडिंग चार्जेस होते हैं, जो यूजुअली वो क्या करते हैं कि कस्टमर से रिकवर नहीं करते हैं लेकिन खुद बेयर करते हैं, तो लेकिन वो डिस्काउंट नहीं होता, वो एक चार्ज है जो वो इनवॉइस पे फिर भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी क्लाइंट्स ये हो जाते हैं कि हम कैसे दिखाएं, क्योंकि कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है, बट मेंशन नहीं है कहीं पे भी, FAQs में भी नहीं मेंशन है, तो फिर हम लोग उनको ये फॉरवर्ड करके रख देते हैं मेल पे, बिकॉज ये मेल पे अगर आ जाता है तो एटलीस्ट यू विल बी क्लियर दैट ऐसा उन्होंने ही वर्क अराउंड सजेस्ट किया एंड दैट इज व्हाई वी हैव डन इट। सो एनी सिनेरियोज स्पेसिफिक टू योर इंडस्ट्री, बिकॉज अभी तक तो जितने भी हमने देखे हैं हमारे पास है उसके हिसाब से हमने रिपोर्ट किए होंगे, बट आपको और भी केसेस आ सकते हैं, तो यू कैन रिपोर्ट इट एंड you can get back the answers and share it across the association so that everyone can be on the same ground. So so actually invoice start hai, it's not the end. તો હવે બધું સમજી ગયા બધા લોકો કે આ છે ને એકચ્યુઅલી છે આપણું શું કહેવાય શરૂઆત છે આમાં આપણો we have to start with our data, તો ડેટા કરેક્ટ હોવું જોઈએ બધું, એના પછી આપણે IRN જનરેટ કરવાનું છે, IRN પછી જ ઈ-વે બિલ કરવાનું છે અને પછી GSTR1 માં જશે। GSTR1 માં એટલે ત્રણેય જગ્યા પર સેમ ડેટા હોવું જોઈએ, અધરવાઇઝ you are in a mess because બહુ બધા reconciliations લાગશે તમે લોકોને। પ્લસ હજી એક ચીજ છે કે you for this also na even if you are a small taxpayer or not that those many transaction even if you are using offline utility, એટલું એન્શ્યોર કરવું જરૂરી છે કે ઈ જે પણ ડેટા એક્સ્ટ્રેક્શન થાય છે તો ઈ લોકોને ટેકનિકલ લોકો પાસેથી એક્સ્ટ્રેક્ટ કરાવો, જે પણ મેન્યુઅલી પણ તમે અપલોડ કરશો એમાં પણ એન્શ્યોર કરો કે સિસ્ટમમાંથી એટલીસ્ટ ઓટોમેટેડ આવે, બીકોઝ ઈ બધા પ્રોવિઝન હોવા જ જોઈએ ERP માં કે જે ફોર્મેટ સ્કીમા જે છે એ એક સ્ટાન્ડર્ડ સ્કીમા છે અને એ એસેન્શિયલી ERP વાળા જે છે એ લોકોને એસેન્શિયલી એ બધી ફિલ્ડ્સ રાખવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। So our extraction in Excel format should be possible even if you are using a government tool, and ઈ એક્સ્ટ્રેક્શન ઓટોમેટેડ હશે એટલું તમારી લાઈફ સિમ્પલ હશે, બીકોઝ એક વખત સિસ્ટમથી જ આવેલું ડેટા છે એમાં તમે કાંઈ ચેન્જ ન કરો તો બધું કેમ કે હમણાં GSTR1 માં વી કેન સી વાઇલ પંચિંગ ડેટા વી આર ઇન અ મેસ, બીકોઝ એમાં પછી રોંગ ડેટા જાય છે ને બધું થાય છે। સો યુ હેવ ટુ એન્શ્યોર, અને તે તમે અગર કોઈ પ્લેટફોર્મ પર છો હમણાં તો ઈ પ્લેટફોર્મ પર પણ યુ શુડ એન્શ્યોર દેટ આ બધી ચીજો તમને એક સાથે એક જ પ્લેટફોર્મ પર મોનિટર થવા મળવી જોઈએ। સો એવા પણ તમારા ક્લાયન્ટ હશે જે લોકો હમણાં એક્ઝિસ્ટિંગ તમે લોકો બીજા પોર્ટલથી કરો છો અને ઈ લોકો ઈ-વે બિલ પોતાની રીતે કરે છે, હવે ઈ ઇન્વોઇસિંગ પોતાની રીતે કરશે, બટ at the end GSTR1 માટે for CAs it will become more complex now because તમને reconciliation પણ કરવું પડશે સાથે, because government is also going to auto populate. So ઈ બધું તમને ઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હમણાં કે સ્ટેન્ડર્ડાઇઝ ડેટા હોવું જોઈએ બધા જગા પર। so that is what they are looking for, and additionally આ બધા છે ને આ લોકો ટ્રેડ ફિનાન્સિંગ એન્ડ MSME લોન્સ નું જે બધું આવે છે, there also they are going to use the e-invoicing data, so now that will become the base
instead of only the returns. That will be the main, because that will be invoice discounting also. It will be based on that. So yes, that's it from my side. Preetham sir, you want to add anything to this? I think very well explained, Vaishali. I think you have captured all the practical challenges. So now we can throw the floor open for a Q&A. So if there are any specific questions, we can cover those questions then of the participants. Sure, sir. Sure, sir. First of all, thank you very much for giving detailed descriptive information regarding e-invoicing. There are few questions raised in this chat box. First of all, I'll discuss on this issue. Yeah. E-invoicing also need e-way bill. अच्छा, ई वे बिल जो है, तो ये डिस्कशन हो रहा है कि जैसा ई इनवाइसिंग, बिकॉज सी क्या हो रहा है, अभी आप ई इनवाइस बना रहे हो, वहां से डेटा एक्सपेक्टेड है कि ई वे बिल को जाएगा, फिर GSTR1 में जाएगा, फिर 3B में जाएगा, बराबर है. तो ये एक्सपेक्टेड फ्लो है. यानी राइट नाउ एज वी स्पीक ई इनवाइस भी एप्लीकेबल होगा आपको, और ई इनवाइस भी ई वे बिल भी एप्लीकेबल हो सकता है. ई इनवाइस और ई वे बिल दोनों एप्लीकेबल है. गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ई इनवाइस एप्लीकेबल हो जाएगा, आफ्टर सम मे बी कपल ऑफ मंथ्स दे माइट से कि ई वे बिल अभी स्क्रैप कर दिया, अभी सिर्फ आपको ई इनवाइस ही बनाना है. बट मीनवाइल यानी कि जो हमारा गेस है मिनिमम 6 महीना से साल भर तक मिनिमम, तो ये पैरेलली दोनों चलेगा सिस्टम. बिकॉज गवर्नमेंट का क्या है कि दोनों सिस्टम का जो डेटा ई इनवॉइस पे जो डेटा ले रहे हैं ई वे बिल में, वो स्लाइटली डिफरेंस है, वो दो अलग अलग सिस्टम है. इसके लिए अभी तो पैरेलली दोनों भी चलेगा, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे विल शिफ्ट टू वन सिस्टम. हो सकता है, या अभी ये भी हो सकता है कि दे विल से नहीं हमको ई वे बिल का भी डेटा चाहिए और ई इनवॉइस का भी चाहिए. सो एक्सपेक्टेड है कि वो मर्ज हो जाए, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. अगेन मैं कहूँगा कि टैक्सपेयर का कंप्लायंसेस अगर आप देखेंगे कितना बढ़ रहा है प्रैक्टिकली. आपको ई इनवॉइस बनाना है, ई वे बिल बनाना है, GSTR1 एंड 3B. अभी गवर्नमेंट कहेगा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, लेकिन ऑटो पॉपुलेट के बाद भी जैसा वैशाली ने राइटली हाईलाइट किया कि रिकंसिलेशन रखना पड़ेगा ना, कि मेरा जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो सही में उतना ही है क्या, कुछ कम ज़्यादा चीज़ें हैं. सो दैट अगेन बिकम्स एडिशनल. प्लस मेरा GST रिटर्न का पोर्टल जो है वो अलग है, gst.gov.in. ई वे बिल का मेरा अलग पोर्टल है, ई इनवॉइस का मेरा 3 पोर्टल है. तो ऑलरेडी मेरे लाइफ में कम पासवर्ड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड है कि ये 3 लॉगिन आईडी और पासवर्ड और आ गए. यानी कि दैट इज समथिंग विच इज अ बिट, यानी कि जो वन नेशन वन टैक्स, एंड देन देयर आर 3 वेबसाइट्स विच आर मैनेजिंग वन नेशन वन टैक्स. दैट इटसेल्फ इज आयरनी. And so somewhere I think that is ease of doing business, but ease of doing business for consultants, not for companies. Practically. Another question is for ma'am. During your discussion, you have mentioned that there is a main user and sub user. Can you explain in detail what about main user and how we can involve ourselves in for the purpose of main user and sub user? Okay, so see when you register yourself for or e-invoicing या फिर अभी e-way बिल भी अगर आप पोर्टल देखोगे तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर करते हो तो वो मेन यूजर बन जाता है, क्योंकि आप एक यूजर नेम पासवर्ड उसका बना के रखते हो, तो वो एक मेन यूजर हो गया. तो वो मेन यूजर में जब आप फिर लॉग इन करते हो, उसके बाद आपको ऑप्शन रहता है दैट यू कैन क्रिएट सब यूजर्स. सो सब यूजर्स यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी को ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस वाइज ई-वे बिल में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो प्लेस ऑफ बिजनेस बहुत सारे होते हैं, तो अगर उनको क्रेडेंशियल्स देने हैं तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस लेवल पे नए नए यूजर्स, सब यूजर्स क्रिएट करते हैं वो लोग, एंड फिर अकॉर्डिंगली वो क्रेडेंशियल्स देते हैं. तो ये गवर्नमेंट पोर्टल पे उन्होंने ये मेन यूजर सब यूजर कंसेप्ट रखा हुआ है. सो ये मैं इसलिए बता रही थी बिकॉज सब यूजर को सिर्फ जनरेट, कैंसिल ये सब रहेगा, उसमें भी ऑप्शन रहता है कि क्या क्या आप वो सब यूजर के लिए क्या क्या एक्शंस आपको अलाउ करने हैं, जनरेट अलाउ करना है कि नहीं, कैंसिल अलाउ करना है कि नहीं. बट जब सिलेक्शन ऑफ GSP आता है या जब कोई डायरेक्ट API इंटीग्रेशन करना चाह रहा है, तो ये जो ऑप्शंस दिखते हैं कि वेदर मुझे डायरेक्टली करना है या ASP GSP के थ्रू करना है, तो वो ऑप्शन सिर्फ मेन यूजर लॉगिन से सिलेक्ट हो सकते हैं, ये सब यूजर लॉगिन से नहीं कर सकते. तो ये एक पॉइंट मैंने ऐड किया था कि आप अगर कोई ASP GSP प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो एसेंशियली आपको फिर वो जो GSP रहेगा उसको सिलेक्ट करना पड़ता है. ई-वे बिल में भी किया होगा आप लोगों ने, तो वो सेम चीज ई-इनवॉइसिंग में भी है, तो वो लेकिन मेन यूजर लॉगिन से दिखेगा, सब यूजर से नहीं दिखेगा. सो ये एक
कंसेप्ट है मेन और सब यूजर का. बट इट इज नॉट लाइक कि पैन लेवल पे कोई मेन यूजर होगा जिससे मैं कर सकूँ. वहाँ पे गवर्नमेंट पोर्टल पे GSTN लेवल ही है सब कुछ. सो अगर आपको ऐसा कोई ये चाहिए जहाँ पे आप सब कुछ एक तरह से मैनेज कर सको, तो वो थर्ड पार्टी सोल्यूशन ही आपको दे सकता है, जो आपको सिंगल साइन ऑन से आपको सारे GSTNs के लिए इवन ई-इनवॉइसिंग दे, ई-वे बिल दे एंड सफायर दे. मैं आपको वो भी डेमो दे सकती हूँ, just how e-invoice generation actually happens, but I think we are short of time. We'll take the questions. Maybe अगर किसी को और डेमो वगैरह देखना है तो they can definitely write to us accordingly. Sure, ma'am. Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीतम जी आपके लिए है. वो क्वेश्चन ऐसा है कि वेदर प्रिंटिंग प्रेस लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया और एनी अदर पब्लिक मीडिया, they are collecting newspaper advertisement publication and newspaper charges, etc. Say aggregate turnover is above 500 crores. So there is a multiple service and supply of goods are there, and across 500 crores. So e-way bill is e-invoicing is required. Yes, certainly. सिर्फ इसमें क्या होगा कि अगर यूजर जो है अगर वो B2C है, बराबर है, बिकॉज न्यूज पेपर अगर मैं परचेस कर रहा हूँ B2C सप्लाई है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है. सिर्फ कहाँ पर आएगा एप्लीकेबल जब B2B ट्रांजैक्शन है, कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है वगैरह, तो सर्टेनली दे वुड बी इशूइंग ई-इनवॉइसेस. ओके, थैंक यू. यस मैम, एक आपके लिए क्वेश्चन है कि आई थिंक यू आर प्रोवाइडिंग थर्ड पार्टी सर्विस फॉर ई-इनवॉइसिंग एंड ई-वे बिल. करेक्ट. व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन? Yeah, so I'll just share our email ID, so you can just whoever wants to take a detailed demo and understand the cost, because this is not a direct cost. It depends upon how many GSTNs you have, how many invoices you have. So accordingly we collect some information and then define it, because this is all data centric. So we have to accordingly get that thing and right. So you can write to us. We will get in touch with you and we'll let you know. ઓકે મેમ, મિત્રો આપણે આ જે ચેટ બોક્સમાં ઈમેલ લખેલો છે, જે ઈમેલ છે support@irisgst.com, જેને પણ કોઈ પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય બરાબર એમને કોમ્યુનિકેટ કરી શકે છે. અનધર ક્વેશ્ચન, હાઉ ટુ રેક્ટિફાઈ મિસ્ટેક ઇન e-invoice, if any? If yes, तो how much is the time for rectification? तो वो मुझे लगता है वैशाली भी ऐड करेगी उसमें, बट आई कैन शेयर कि 24 आवर्स इज द टाइम, दैट्स इट. 24 आवर्स के अंदर, यानी कि आप अपने अनिल कपूर का सीरीज देखा रहेगा ना 24 आवर्स, उसको याद रखिएगा. 24 आवर्स के अंदर आपको कैंसिल करना है, नो अदर चॉइस. कैंसिलेशन यानी कि करेक्शन कोई बात ही नहीं है, स्ट्रेट अवे कैंसिलेशन. दैट इज आई थिंक अगेन ये एक यूनिक फीचर है जीएसटी का कि आप अमेंड नहीं कर सकते. जीएसटीआर 3 भी अमेंड कर सकते क्या? नहीं कर सकते. यानी कि they don't give edit option, because I think there is some inherent distrust between the tax authorities and the taxpayers, कुछ कहीं ना कहीं system level पे. So they are not allowing us to do any correction whatsoever, because every time the correction का उनका assumption रहता है कि कुछ misuse करेंगे लोग corrections वगैरह का feature, and that the reason कोई भी आप देखेंगे ना GSTR 3 में option ही नहीं दे रहे. rigidity है system में, तो वो rigidity e-invoice में भी है. यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिलेशन, एडिट वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है. कोई ऑप्शन. करेक्ट. हमारा एक पार्टिसिपेंट है मिस्टर पूर्वेश गणात्रा. पूर्वेश भाई ने अनम्यूट करशो प्लीज. ही हैज रेज्ड हिज हैंड. मिस्टर पूर्वेश गणात्रा, તમારા કચ્છના છે બેન? મિસ્ટર પૂર્વેશ. हाँ जी सर, કેમ છો? બસ મજામાં. પ્લીઝ કન્ટિન્યુ સર. તમારો કોઈ સર એક સપોઝ અત્યારે ન્યૂ ડીલર છે જેને હમણાં જ રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે, એના માટે આ 100 કરોડ વાળી જે લિમિટ છે એ લાગુ પડશે? કારણ કે અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો મેજોરિટી જે આપણા ટ્રેક ઇનવોઇસ ને જે બને છે એ ન્યૂ ડીલર માં ઘણા બધા બનતા હોય છે, તો પછી એનો ટ્રેસ આઉટ તો આના સાથે થશે જ નહીં ને? જે આ ઈ ઇનવોઇસ નો જે મેઇન ઇશ્યુ છે કે જેના કારણે આ બધું થઈ શકે. सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप समझ गए सर? नहीं समझे. हाँ, मैं समझाता हूँ. टेक्निकल इश्यू, आई एम ए पर्सन और आई एम ए रजिस्टर्ड डीलर. हाँ सर. I have obtained registration right now. Okay. And my practical problem is how to generate e-way bill in this scenario. E-invoice.
Sorry, e-invoicing. Because my turnover is not crossing the threshold limit of a compulsion of एक्चुअली अभी जो बोगस इनवॉइस जो होता है ना, वो न्यू डीलर में ज्यादातर होते हैं। तो ये जो ई इनवॉइस वाला जो फॉर्मूला था, तो क्या रहता है कि अभी सपोज मेरा है ही नहीं टर्नओवर, मैंने न्यू ही नंबर लिया है, तो आपको कोई वरी करने की बात ही नहीं सर। ई इनवॉइस का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल कब है? अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 ये 3 सालों में अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है तो ही आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। अगर आपका कंपनी अभी रजिस्टर हुआ है अक्टूबर 2020 में, तो नेचुरली पिछले 3 सालों का टर्नओवर जीरो है आपका, तो आपको ई इनवॉइसिंग अभी एप्लीकेबल ही नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी। आई थिंक ही इज कंसर्न्ड अबाउट द परचेस साइड, राइट? हाँ, परचेस। अच्छा, हाँ, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि आयरिस के पास अगर उसका कोई सॉल्यूशन है तो आई डोंट नो, बट गवर्नमेंट ने उनके पोर्टल पे 32,000 जो ई इनवॉइस के लिए रजिस्टर्ड लोग हैं उनका डेटाबेस डाला है। अभी उसमें सबसे बड़ा जो पूर्वे जी ने पॉइंट रेज किया है ना, वो ये है कि हो सकता है कोई किसी का 600 करोड़ टर्नओवर है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं जब चेक करूंगा 32,000 में मुझे पता ही नहीं चलेगा, एंड बाद में जीएसटी अथॉरिटीज बोलेगा अरे आपने जो परचेज किया था उसने इनवॉइस देना चाहिए था। वो एक अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पर भी ना एंटेंगल किया गया है, यानी कि बायर जो बोनाफाइड बायर है उसका कोई राइट ही नहीं है प्रैक्टिकली जीएसटी लॉ में। अगेन उसको डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डाला गया है कि आपके सप्लायर ने कंप्लायंस नहीं किया तो आपकी पेनल्टी है, यानी कि आपका ही गलती है। तो जैसा वो मैरिज के बाद नहीं क्या सर, शादी होने के बाद हस्बैंड का ही गलती होता है, तो वैसा है। तो एक बार आपने जीएसटी के साथ अभी शादी कर ली तो आपका ही गलती है जो भी रहेगा। Maybe this feedback we can give it back to because we are in constant touch with NIC people and GSTN people. We can that first April say if you are making it applicable for all, so irrespective of turnover and irrespective of the year, it should be all invoices then. Very true. And वैशाली अगर आप देखोगे ना, जीएसटीएन ने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बहुत पहले जब वेबिनार हुए थे तब कहा था कि लगभग 50,000 लोग हैं जिनको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो सकता है अगर उनका टर्नओवर 50,000, बिकॉज उनके रिकॉर्ड के हिसाब से 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर था, 50,000 उनका डेटाबेस था। बट अभी जो एनआईसी ने डेटाबेस रिलीज किया उसमें सिर्फ 32,000 लोग दिखते हैं, तो ये 18,000 लोग कहाँ पर है? और अगर उनको एप्लीकेबल है इनवॉइसिंग देन इट्स अ बिग चैलेंज, बिकॉज लोग तो परचेस कर रहे हैं उनसे, क्या होगा? एंड एडिशनली अगर आप देखोगे एनआईसी जीएसटीएन इन्होंने काफी वेबिनार किए थे, काफी नॉलेज डिसेमिनेशन किया था। कब किया था? 3 या 6 महीने पहले, बराबर है। लेकिन राइट नो अगर आप देखोगे 100 करोड़ प्लस जो टर्नओवर वाले बिजनेसेस है उनको ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत है, बिकॉज जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है उनके पास इन हाउस आईटी टीम होता है, सॉफ्टवेयर टीम होता है, बड़े कंसल्टेंट रहते हैं। बट जो स्मॉलर टैक्स पेयर्स है उनके ऊपर अभी इनवॉइसिंग मैंडेटरी होगा 1 जनवरी 2021 से, एंड उनको कोई हैंड होल्डिंग ही नहीं दिया जा रहा है। अगर आप देखोगे लास्ट 1 मंथ में नॉट मेनी वेबिनार्स और सेमिनार्स हैव बीन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो। दैट इज अगेन अ बिट अनफॉर्चुनेट आई वुड से, बिकॉज वो पब्लिक डॉम में अभी तक ज्यादा है नहीं। और सर मिसिंग लग रहा है, यानी कि एज अ प्रोफेशनल एज अ आयरिस टीम सर्टेनली वी कैन मोर देन हैप्पी टू डू दैट, बट कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का भी है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी चेंज है। लोगों को अभी तक तो 3.5 साल बाद भी लॉ ही नहीं समझ रहा है, बिकॉज इट इज सो सिंपल, गुड एंड सिंपल दैट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। बट एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न एटलीस्ट उसके लिए तो कोई सपोर्ट देना चाहिए ना, मिसिंग लग रहा है। एंड वो ज्यादा कंसर्निंग फैक्ट है, बिकॉज 100 करोड़ प्लस टैक्स पेयर के पास बहुत बार ये इन हाउस कैपेबिलिटीज नहीं होता है। सर ये बिल डेट पास्ट की अलाउडेबल है या नहीं? आवाज आ रही है? हाँ, उनका क्वेश्चन ऐसा है कि आज 9 तारीख है, मैं 8 तारीख का मैं ये उनका क्वेश्चन रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। आज 9 तारीख है, अगर मैं लास्ट 1 तारीख का या लास्ट मंथ का कोई इनवॉइस डेट डाल के ये इनवॉइस जनरेट कर सकता हूँ, वेदर इट इज परमिटेबल और नॉट? आइडियली वो पहले रेस्ट्रिक्शन डाला था गवर्नमेंट ने, 24 आवर्स का डाला था, विद इन 1 डे ओनली। आपको एक बार मिस हो गया तो फिर आप ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर सकते थे, विद इन 1 डे ओनली आपको 24 आवर्स का टाइम लिमिट दिया था। अभी वो रेस्ट्रिक्शन निकाल दिया है। एंड वैशाली कैन प्लीज ऐड।
in the same. so वो restriction निकाल दिया है, but it is very clear that मतलब आप अगर आप backdated भी कर रहे हो तो वो buyer के पास बिना IRN के नहीं जा सकते, या कोई भी पर्पस के लिए आप वो बिना IRN के नहीं यूज कर सकते। तो आप वो इनवॉइस डेट भले ही पुराना हो, लेकिन आपका वो जो भी आप शेयर करोगे जब भी बायर के साथ या मूवमेंट करोगे तो बिना IRN के नहीं हो सकता, वरना पेनल्टी विल बी अप्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो एंड जस्ट टू ऐड टू वैशालीज पॉइंट, अगर आप जब ये गवर्नमेंट के पास डेटा सबमिट करोगे, ऑल द टाइम गवर्नमेंट को पता रहेगा कि आपका ई-वे बिल का एक डेट है, आपका इनवॉइस का एक डेट है, और आपका ई इनवॉइस का एक डेट है। तो 3 डेट्स है। तो ये आपका जब असेसमेंट होगा, ऑडिट होगा, तो उसके बारे में सर्टेनली क्वेश्चंस किए जाएंगे, बिकॉज काफी सारे बिजनेसेस वी नो कि दे टिपिकली मंथ एंड पे उनका टारगेट होता है सेल्स का, तो मंथ एंड पे इनवॉइस रेज करते हैं, बट ई-वे बिल बनता है 15-20 दिन बाद। बस वही उसके लिए ये सब जो ट्रांजेक्शन है ना क्लोजिंग वाले, वो काफी क्वेश्चंस किए जाने वाले हैं इन डेज टू कम, एंड दैट द रीजन अभी ई-वे बिल में रियल टाइम डेटा जब जाएगा, वी नीड टू बी मोर केयरफुल, वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। जहां पर एक्सट्रीम बिजनेस, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल्स, हमको ये नॉट ओनली फाइनेंस एंड टैक्स टीम को बताना चाहिए, बट जो उनका सेल्स टीम है, जो लॉजिस्टिक्स टीम है, जो प्रोक्योरमेंट टीम है, उनको भी बताना चाहिए, बिकॉज टिपिकली वही लोग ये सब चीजें करते हैं। अगर उनको पता चलेगा कि लॉ में इस तरह के चैलेंजेस आए हैं, दे विल ट्राई टू रिड्यूस दोज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। हो सकता है कि बिजनेस नेसेसिटी है, फ्रॉड नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिजनेस नेसेसिटी है, एंड टैक्स पे हो रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी असेसमेंट के बाद क्या होगा, 3, 5, 7 साल बाद जब होगा असेसमेंट, किसको याद रहने वाला है? सो मच बेटर है दैट वी शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी। वी नीड टू प्रोवाइड दैट क्लैरिटी टू द परचेज टीम, सेल्स टीम एंड ऑल, and try to avoid or minimize these kind of transactions, है ना वैशाली? Yes. And वो remove भी इसलिए किया है actually because there was this constant pressure from the taxpayers कि नहीं, we have services में ऐसा होता है, you cannot keep 24 hours, at least at least give us 4-5 days or something। फिर बाद में और लोगों ने बोला कि नहीं ये possible ही नहीं है, so वो जो feedback आया उनसे, तो accordingly उन्होंने वो validation निकाल दिया, but उसके आगे क्या implications हो सकते हैं वो तो अपने को पता ही है, so थोड़ा take care करना पड़ेगा हम लोग को। Correct. एंड हो सकता है कि बाद में ये काफी सारे जो वैलिडेशन है, अभी उनको लग रहा है कि चलो ई इनवॉइसिंग कंसेप्ट पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, राइट, धीरे धीरे ये वैलिडेशन ऐड करते जाएंगे। करेक्ट, तो वो भी एक फेज हमको, बिकॉज सी व्हाट हैपेंड वाज कि हम मतलब टैक्स पेयर्स से भी यही जा रहा था कि लॉ में कहीं पे नहीं डिफाइंड है कि यू हैव टू जनरेट IRN सेम डॉक्यूमेंट डेट, तो that is why people were like तो तुम नहीं कर सकते ना, then you cannot put this restriction, so they have put it आगे जाके maybe they added, so all these things if it all they add, they have to add it through law only, otherwise वो उसका कोई validity नहीं होता then। एकदम बराबर। एक जस्ट कुछ मुझे लगता है क्वेश्चन आया अमित जी से कि अगर मैंने ई-वे बिल कैंसिल कर दिया और मैं ई इनवॉइस अगर कैंसिल करना भूल गया, करेक्ट, तो क्या होगा? तो फर्स्ट थिंग आई थिंक, अगर आपने ई इनवॉइस 24 आवर्स में कैंसिल नहीं किया तो आप क्रेडिट नोट दे सकते हो, और ये क्रेडिट नोट जो है आप GSTR 1 में दिखा सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास क्या आएगा पता है क्या? ऐसे सिचुएशन में कि आपका कस्टमर बोलेगा अरे ये तो आपने कभी इनवॉइस दिया ही नहीं, आपने इनवॉइस जनरेट किया, क्रेडिट नोट दिया, बिकॉज उसके GSTR 1 में भी दिखेगा ना, वो बोलेगा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी कि देन देयर वुड बी अ क्वेश्चन फ्रॉम योर कस्टमर्स एंड, दैट द रीजन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये पूरा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके कहीं ना कहीं कस्टमर के पास जाने वाला है, दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू, सो ऑब्वियसली ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन, बट अगर होता भी है सो जस्ट बी राइट ए ईमेल टू देम कि सर ऐसा कुछ हुआ है, हम आपको क्रेडिट नोट दे देंगे, बिकॉज उसका भी रिकॉर्ड्स में वगैरह वो आएगा। या वैसे यूजुअली ई-वे बिल कैंसिलेशन लोग इसलिए करते हैं बिकॉज शायद व्हीकल डिटेल गलत डाल दिया तो उनको वापस डालना है, तो ये उन्होंने क्या बोला है कि ई-वे बिल कैंसिल करते हो तो आप वापस से सेम डॉक्यूमेंट को यूज करके आप ई-वे बिल दूसरा बना सकते हो, लेकिन अगर आप IRN कैंसिल करोगे तो सेम डॉक्यूमेंट नहीं यूज कर पाओगे, तो ये सबसे बड़ा एक है कि आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट, और इसमें भी जब आप बोल रहे हो क्रेडिट डेबिट तो उसमें भी वो चैलेंजेस प्रैक्टिकली आते हैं कि तो मूव हो चुके हैं तो अभी मैं नहीं कर सकता ये चीज, तो एंड प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट में ये सारा ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज एक्सपोर्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कैंसिल मतलब कैंसिल तो 24 आवर्स है, लेकिन क्रेडिट डेबिट नोट का आता ही नहीं है, उनके सिस्टम में ही नहीं रहता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सो
And abhi, it's the right time to start going into details and checking what is required, how all the transactions, मतलब आपको B2B export सारे एक एक transaction करके आपको check करना पड़ेगा कि आपका सब proper data जा रहा है कि नहीं, plus ये अगर आप जो भी automation use करते हो या जैसे भी जाते हो तो ensure करना पड़ेगा कि correct ही data जाए हमेशा. तो even if आप एंड जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट यूटिलिटी भी यूज करोगे तो इंश्योर करो वो आपके सिस्टम से ही वो फॉर्मेट में आ रहा है, बिकॉज अदरवाइज मैन्युअल अगर आप एंट्री करोगे तो बहुत सारे आगे जाके आपको हो सकता है, बिकॉज ये ना क्या हो रहा है कि वन भी ऑटो पॉपुलेट होगा, बाद में आप एडिट करोगे, टैक्स ऑफिसर्स के पास जाएगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर मंथ बैठ के. तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए आप जितना हो सके आप टेक्निकल टीम पे भी डाल सकते हो. अभी अगर हम बोले स्मॉल हो या लार्ज टैक्स पेयर हो, every ERP is supposed to have all these fields, and at least extraction they should be able to give you, even if not complete automation, but extraction in that format is must, even if you go with government offline tool. So ये important है. मैम तो मीनिंग ऐसा हुआ ना कि सपोज मेरा मैंने ई वे बिल में कोई भी गलती कर दी है तो मेरे को ई वे बिल भी कैंसिल करना है, साथ में ई इनवॉइस भी कैंसिल करना है, वरना वो पेज फंस जाएगा. नहीं, ई वे बिल आप वापस से सेम IRN से बना सकते हो. तो आप सेम IRN डालो और ट्रांसपोर्ट डिटेल्स जो भी अपडेट करनी है आपको वो डालो और न्यू ई वे बिल नंबर बना सकते हो आप ई वे बिल कैंसिलेशन के बाद भी. ओके, थैंक यू. IRN कंपलसरी नहीं है कैंसिल करना. Okay, thank you. So with this understanding, we assume that there is a parallel accounting system which is going to be introduced or going to be maintained by every dealer on government portal. मानी मेरे पास टैली है, ERP है, वहाँ पे मैंने इनवॉइस बनाए या नहीं बनाए, लेकिन गवर्नमेंट पोर्टल पे ई इनवॉइस एंड ई वे बिल बन गए तो 24 घंटा और 72 आवर्स वहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन हो गया. मान लीजिए कि मेरे अकाउंटिंग सिस्टम में कोई इनवॉइस ही नहीं है, लेकिन ई इनवॉइस आई एम फेल टू कैंसल दिस इनवॉइस विद इन 72 आवर्स और 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली. तो देन इन दैट केस गवर्नमेंट उसको ट्रांजैक्शन ट्रीट करेगा, वर्चुअली मुझे क्रेडिट नोट डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा जो डीलर नहीं कर रहे हैं. तो ये ऐसा सिस्टम नहीं है. दिस इज द मेजर एस्पेक्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस this is a purely automated transactions. तो यहाँ पे IRS ने अभी जो हमको ऑफर किया है उनका email ID भी है. Every person can discuss amongst through our client for our client. And all together, sir, once again we are thank you very much. And sir, ये e-invoicing का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हमारी बात चल रही थी, तो वो एंगल पे हमारा एक ड्यूटी बनता है चारों एसोसिएशन का कि मेमेंटो से आपका थैंक विशेष करें. तो गुजरात सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट एंड करंट कमिटी मेंबर श्री शिरीष भाई विसनगरी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रीतम भाई को मेमेंटो ऑफर करें. We are all thankful to you for your prestigious lecture. Thank you very much. And now, on behalf of AGFTC, Senior Vice President CA Arvind Bhai Gudana से मैं request करता हूँ कि वैशाली मैडम को मेमेंटो ऑफर करें. Once again, thank you very much. Thank you. And now, I am requesting Mr. Pratik N. Patel, Secretary of Tax Advocate Association of Gujarat, to give vote of thanks on behalf of all members and all association. Pratik bhai. Hello and good evening, friends. At the outset, firstly, I would like to thank Sri Sunil Bhai Keshwani, President of Tax Advocate Association Gujarat, Sri P.K. Soni sir, President of Gujarat Cell Tax Bar Association, Sri Bharat Bhai Sheth, President of all Gujarat Federation of Tax Consultants, Nigam sir and Akshat sir, founder member of National Association of Tax Professionals, and convener Sri Varis Isani ji for giving me opportunity to propose vote of thanks. Both the eminent speaker of the day, Sri Pritam sir and CA Vaisali ji, for giving his talk on overview of concept and challenges on e-invoicing in India.
I would extend our deep sense of gratitude toward both the speaker for sharing their knowledge on the topic which concern all of us. Lastly, I would like to appreciate and acknowledge the strength and support provided by all delegates present here and make our webinar successful. Thank you very much. Pritamji, very good, very, very informative. Thanks to you both speaker. Thank you, sir. Thanks for the Thank you, opportunity. Pritamji. Thank you, Thank madam. you. Thank you. Thank you. With the permission of all, shall we close the session, sir? Yes. Yes. Pratik bhai, I'll We request you to close close the session. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thanks for opportunity. Thank you, sir. Thank you. Thank you.